रुक चुके हैं नौजवान मंगई में जुबान कर ले अमर के होठ पर मांगे पंछी का Assalamu alaikum everyone. Welcome to episode number 63 of TPR Pod and some episode number on YouTube. We have a special guest. He is so out of it. Shehzad Malik from the Shehzad Show on YouTube. Hello. और आप सब इनको तालियां लोग इनको पागल हो फॉलो गए करते होंगे या लाइक कपड़े उतर रहे हैं सब ओह नहीं सॉरी रमजान नहीं and Shehzad is like a bacha so yeah please Probably. how old are you Shehzad 19, sir. what yeah, bro. I know. Again, I get that a same lot. question, second week in a row. What the hell were you doing at 19, Rizwan? nothing productive. नहीं मसला ये I don't remember what I was doing when I was 19 I have no memory of it Bleach पी रहे थे तुम उस जमाने में I was going to say second week we have a young person on, but Ali Chaudhary is also a young person, so I think it's the third week we have a very young person. Indeed. Yeah. Our cutoff is anyone younger than Sarkhail is a young person. कौन कहता है हम यूथ को चांस नहीं देते हैं? Chance. Right, Shehzad, thanks for coming. How are you doing? How are things? Sir, I am pretty good. अभी तो कल बहुत सारे मुझे काम करने थे. कल भी एक पॉडकास्ट थी मेरी कैंसिल कर दी मैंने क्योंकि असाइनमेंट मुझे पता चला कल लास्ट मोमेंट मुझे पता चला एक असाइनमेंट है 11:59 पे सबमिट करना था. So I would like to again I didn't submit it, so that's nice. आज होगा सबमिट या बस अब नहीं हो रहा? होपफुली होगा. मैंने लाइक एक होता है कि मतलब जिससे देख के मुझे थोड़ा हुआ बेहतर फील हुआ खुद के बारे में कि किसी ने भी और सबमिट नहीं किया था क्योंकि क्लास में लाइक 40 बच्चे हैं और लाइक कोई 15 ने सबमिट किया था तो लाइक चलो सही है बाकी भी फेल हो रहे हैं मैं भी फेल होऊंगा साथ. Shehzad, we have as you know हमारे पास सवालात हैं related to your work on YouTube. देखो हमने बहुत आपको एक प्रोफेशनल हमने एक चीज भेजी थी लेकिन before we do that I think a good way to start for these interviews is how about you tell us a general idea of who you are just from your perspective and we'll dive in उसके बाद से. मैं एक यूट्यूबर हूँ since 2015 and I've started with sketches then converted to vlogs then stopped sketches and then continued vlogs and then copied Irfan Junejo and then stopped also copying Irfan Junejo by stopping vlogging apparently. बिल्कुल इरफान जुनेजो मसला बन गया. नहीं अभी हम नहीं बोलते. This is already more than I did at the age of 19. Yeah. No, he's been doing it since 2015, which means he started when he was 14. So actually started when I was 12, but like with my cousin. एक और हमारा वो अलग कहानी है. Bro, जब मैं 12 साल का था तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था. I mean, it's like okay. And you are in LA. I am in LA and from Karachi. Karachi in LA since like just 4 years. मैं LA का नहीं हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ. सही है पाकिस्तान में मैं 15 साल रहा हूँ. ये सबको बताना चाहता हूँ. मैं बार बता के तंग आ चुका हूँ जी. नहीं एक्सेंट बना अभी तक के नहीं. एक्सेंट अभी तक जो है अपनों से नहीं बना. It's weird because जब अमेरिकन से बात करता हूँ तो फिर accent becomes like this and then you talk like this. तो फिर ऐसा होता है bro. लेकिन क्या कहते हैं? वो पूछते ब्रो तुम्हें क्या हो गया? ब्रो पता है अगर मैं एक दिन में एलए में रहता ना तो मैं कहता मैं एलए का हूँ. तुम पता नहीं किसका वेट कर रहे हो. ये वैसे ही जैसे सरखेल आइसलैंड का है. सरखेल का मैनचेस्टर में स्टॉप ओवर हुआ इसका ब्रिटिश एक्सेंट आ गया. ब्रो तुम मतलब मेहनत करो ना. ये बड़ा committed guys. There is a small true story यहाँ पे मेरे एक दोस्त के साथ who शहजाद हम अभी आते हैं आपकी तरफ.
जो मेरे साथ A levels में था और he grew up in Lahore but उसका belong किसी गांव से है अच्छा so उसका belong किसी गांव से था so he had a very like काफी मुश्किल उर्दू थी वैसे भी उसकी it was Punjabi but Urdu grammar or something it was essentially Punjabi और अंग्रेजी भी वैसी ही थी तो during A levels because it was a burger school तो थोड़ा सा उसको मसला हो रहा था so he started listening to Tupac. Oh no. And then he moved to Canada university के लिए तो जब वो वहाँ से वापस visit करता रहा he just sounded like a black guy. Yeah. and he still does. Like, Oh nice, nice. अंग्रेजी मतलब बोलते उसकी हुए English वही हो गई बस उसकी English. yeah बस वही जब उस्ताद ही टूपाक हो तो Coming back to this episode. हाँ, Shahzad, Sir. you were 12-ish when you started, but 12-ish, 14, yes. 14 when you got serious. Probably. Yes, 14 when I started the Shahzad show. The Shahzad show. Okay, okay. And then you said that you were doing sketches, फिर vlogging, फिर moved away from vlogging. Oh, you stopped sketches, सिर्फ vlogging. Then you moved And away then from now- vlogging, and now you're doing. What would now you I'm classify doing- as your current? I honestly मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि मैं बनाता क्या हूँ. It would be called narrative based content या video journals or something probably Okay. Okay. around the line. You're a YouTuber, but not a vlogger, is what you Yes. want to say. Not only a vlogger. Not only a vlogger, but like more of a vlogger who focused a lot on the production elements of making a vlog, like storytelling. Okay, editing, okay, good. तो फिर एक स्टैंडर्ड सवाल तो यही बनता है जो कि हमें हर किसी से पूछना पड़ता है ऐसे मौके पे कि ये आपने शुरू कैसे किया आपने ये मतलब how at 12 again what was I doing at 12? I So, honestly do not remember anything of what. Bro, एक मिनट वहाँ तक भी जाने की जरूरत नहीं है. What the fuck were we doing in 2014? Seriously. Yeah. Yeah, I was in a shit job. How did you start? Why did you start? okay. So initial मेरी जो है I guess social media पे videos की presence आई मेरे दोस्त असफन के साथ. He and I started this channel called Mr. Modern and Mr. Ancient. So, Again, this is 12-year-old Shahzad. This is 12-year-old Shahzad, yes. Oh, मतलब So- सही है ना मतलब for 12 this is fine. I guess हाँ. तो क्या कहते Yeah, हैं it's fine. वहां से शुरू हुआ. हमारा थॉट ये था कि हम बोर हो रहे थे एक दिन और हमने लिटरली बोर हो रहे थे बहुत और हम बहुत यूट्यूब देखते थे. रोमन एटवर्ड, फूसी ट्यूब तो पता नहीं क्या बन गया लेकिन क्या कहते हैं सुपर वुमन और क्या कहते हैं हाँ बेसिकली ये तीन ही होते थे मेजर. रोमन एटवर्ड, सुपर वुमन एंड फूसी ट्यूब टॉप ब्लॉगर्स आई गेस. तो इनके हम बड़े कंटेंट देखते थे. वहां से हमने स्केच शुरू किए. मैंने और असफन ने एक रैंडम एक बना दिया जो अभी मेरे चैनल पे प्राइवेट है लेकिन वो बनाया. Okay. और वहां से हम बहुत सारी वीडियोस बनाते थे. फिर एक पर्सनल मसला आ गया क्या कहते हैं हम दोनों के दरमियान जिसकी वजह से Okay. पेज का बहुत कंटेंट डिलीट कर दिया गया था. फिर आई केम टू अमेरिका एंड देन इन अमेरिका आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन चैनल. और ये डिसीजन जो है एक दिन में आया था मुझे. एक दिन में मैंने सोचा यार मैं अब बोर हो रहा हूँ. वैसे हम हो रहे थे अब मैं हो रहा हूँ तो फिर मैं अपना इंडिपेंडेंट शुरू करता हूँ. मैंने ऐसे फोन खोली और फिर आई मेड दिस नेम ऑफ माइन शहजाद शो. और फिर ऊपर जाके हम उस वक्त अपनी चाची के वहां रह रहे थे. अभी चाची के वहां जब जिस कमरे में हम रह रहे थे उधर अम्मी पीछे पैकिंग कर रही है और मैं इधर वीडियो बना. बड़ी क्रिंजी सी वीडियो थी लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों अवेलेबल है. Okay. Okay. So 2015, you're very old at that point. You're 15 years old, I think. आई एम 14. एट दैट पॉइंट आई एम उस वक्त 15 हो चुके. उस वक्त when you made the thing, did you know कि अच्छा मुझे vlogs करने हैं या it was sketches? What was the split? It was only sketches because मैं और असफन जो है सिर्फ sketches ही करते आ रहे थे ना. तो मेरा व्लॉग की तरफ कभी दिमाग में कोई आइडिया आया ही नहीं था. मेरा ये था कि यार सिर्फ मुझे अभी जो है ना कॉमेडी स्किट्स बनाने क्योंकि उस वक्त इन ही यही था. जैद अली था और शावीर जाफरी थे. ये पाकिस्तानी तो यही थे. आई नो लेकिन क्या कहते हैं
और Good. क्या कहते हैं और क्या कहते हैं उसके अलावा जो मेन मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी वो सुपर वुमन थी। सुपर वुमन के स्केच मुझे बड़ा अच्छे Right. लगते थे। उस वक्त ब्लॉग्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आई जस्ट हैड दिस अमेजिंग आई गेस पैशन फॉर एक्टिंग, बट लाइक नाउ दैट्स डेड। Yeah. That's All something is dead. Acha, I'm like kind of. a bit sad to hear that. But yeah, one thing I noticed when I was doing a crash course in your videos, like we said to Momina, ki we knew you and Momina like जी दूर दूर से, और जी we'd जी seen your videos इधर उधर. But जब right. हमने ये कदम उठाया कि oh we should really like get into Pakistani YouTubers, तो हमने एक extreme deep dive किया तुम्हारी सारी videos में. अच्छा An extract of which I sent to you on the email. But people do vlogs, and that's what everyone seems to do now. But तुम्हें clearly बहुत ज़्यादा शौक था of like full sketches and with like a concept or बीच में multiple characters वगैरह. So how did that come about? Like ये दूसरे YouTubers को देख के, or was it something you did? School में कुछ था चक्कर? I know you went to city school. I went to city school, so that's very good. unfortunately yes. No, ये दूसरों के सामने नहीं कहते. अच्छा सही है But yeah, जी how the comedy thing was जी जी very present in all of your earlier videos, and in a smaller right. effect now to the vlogs. So how did that start? That started because there was this, I guess there was such an active wave of making these funny videos कि उससे मुझे इतनी इंस्पिरेशन आई कि मैं अपनी फनी वीडियोस के साथ क्रिएटिव हूँ. The fact that I can play various characters and then talk to myself doing that, तो वो मुझे बड़ी एक वो आती थी, एक चस्का आता था वो कर. मैं तब से जो है बड़ा वैसे इंडिपेंडेंट क्रिएटिव आदमी रहा हूँ. कोई भी और आता है तो बड़ा मसला हो जाता है मेरे लिए. क्योंकि वो मेरा एक मसला था, अभी तो इतना नहीं है, लेकिन इतने वो था कि यार मैं जो है ना अपने आप के साथ, क्योंकि मेरे क्या कहते हैं, इट वाज काइंड ऑफ एन एस्केप फॉर मी making videos and creating my own different characters from specifically school, because school wasn't that fun for me. वो characters की जो mostly वही inspiration जो थी ये मेरी वहां से आए, और एक entertainer तब मुझे बनना था. तो I guess just to go back a bit on the school wali baat, it's fine if you don't want to talk about. You mentioned in some of your early videos also कि I don't know, I think you used the word bullying at that point. Now I am thinking city school का माहौल branch to branch काफी vary करता है, but when you're a young kid and you're making full public YouTube videos, so how was that? I'm sure not everyone liked it. Like some people won't even care कि video अच्छी है ये बुरी है, उन्होंने तो मजाक उड़ाना है. So how was that sort of situation for you at that age? It was very weird क्योंकि initially ही मेरी बगैर चैनल स्टार्ट किए हुए ही मेरा बड़ा मुश्किल टाइम गुजर रहा था. क्या कहते हैं, क्योंकि आई गेस मैं बहुत अजीब था, और क्योंकि क्या कहते हैं बहुत अजीब था क्योंकि आई वाज लाइक नॉट दैट गुड इन पढ़ाई, बट लाइक बच्चा जो है ना बहुत ही अच्छा था, कुछ ज्यादा ही. और जब एक बड़ा ही फुल जो है क्या कहते हैं बिगड़ा हुआ बॉयज सेक्शन, उसमें एक बड़ा क्या कहते हैं अच्छा बच्चा आता है जो गालियां नहीं देता, जो ना फड्डे करता है कोई, ना क्या कहते हैं कोई टीचर के पीठ पीछे मजाक उड़ाता है. तो क्या वो मुझे बड़े ये जैसे कि मम्मी डैडी बेसिकली. हाँ तो मैं मम्मी डैडी बहुत, और क्या कहते हैं बड़ा ये मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती इन चीजों की. तो आई वाज लाइक दैट, एंड इसलिए इनिशियली उनको मैं अजीब लगता था काफी. तो वहां से फिर जो है काइंड ऑफ ये शुरू हुआ बुलिंग वाली चीज कि मैं ज्यादा वो भी नहीं था. उस वक्त बहुत मैं एक्सट्रोवर्टेड था, मुझे दोस्त बनाने का बड़ा शौक था. उन्होंने हमें इंट्रोवर्ट बना दिया. तो क्या कहते हैं बता. हाँ आई नो इट वाज. अब वापस आ रहे हैं हम, वापस एक्सट्रोवर्ट वाले फेज में आ रहे हैं, क्योंकि वही लोग अभी हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं. क्या कहते हैं तो हाँ सक्सेस. उसके बाद जब चैनल शुरू किया ना मैंने, तो जब असफन के साथ जब खत्म हुआ, तो फिर जो है बड़ी एक इंटरेस्टिंग वेव निकली और पुलिस की.
जो कहते थे कि यार ये क्या करते फिरते हो तुम, जो है हमें भी अपने व्लॉग में डालो और फिर मैं अपनी वीडियोस में डालो, ऐसे करते थे। पर नहीं कहता था तो वो फिर शुरू हो जाते थे ऐसे, इधर उधर हाथ लगाते थे और फिर इधर मारते थे। अजीब, बड़ा बैड सीन था। और Wow, that क्लास is में भी fucked मजाक up. And होता था। this is people your age, people senior, क्या सीन था? यस, मेरी एज के सीनियर भी, मेरे से छोटे भी, तो क्या अच्छा, कहते पूरा Fuck, स्कूल। man. पूरा स्कूल। तो क्या कहते हैं, Yeah. लेकिन फिर कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स भी आते थे जिसमें बहुत अच्छे लोग मिल जाते थे, जो कहते थे कि यार हम तुम्हारे साथ हैं, हमें पता है ज्यादा लोग तुम्हें अच्छे पसंद नहीं करते। शायद इसीलिए जो है मुझे बहुत टाइम लगा वो शुरू करने के लिए, एक लाइक ट्रैक्शन गेन करने के लिए, जो लाइक्स वगैरह आते हैं ना, ये सब कुछ। तो क्या कहते हैं, इसकी वजह से बहुत मजाक उड़ता था। वीडियोस पे लड़कियां कमेंट करती थी तो दूसरे दिन लड़के आ जाते थे ऐसे, कोई क्राउड जमा करके कि हाँ भाई इसका क्या सीन है। मैंने कहा भाई कोई पता नहीं, कोई आंटी है एक, मुझे बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप, और उनके साथ ऐसे सीन बना। अजीब, बड़ा अजीब सा माहौल था। तो Yeah, it does sound like, क्योंकि जब मैं तुम्हारी वीडियोस देख रहा था ना, तो you've done a few of your past year in reviews या career Oh, to date kind of तो videos। ज्यादा तुमने कर कुछ, लिया। हाँ मतलब कोई पूछे ना पूछे तुमने तैयार किया हुआ, ब्रो मैंने अब तक इतना ये कर लिया है और फिर अब तक ये कर लिया। It's good, but it's really good to do in these steps, बजाय इसके कि तुम 10 साल एक साथ चेक करो। You have these shorter increments where you can see yourself, changing, your style changing. तो I उसमें guess, तुमने तो I was asking this क्योंकि तुमने 2-3 दफा जिक्र किया था कि शुरू में there were bullies और इस तरह का सीन था। तो which is why I thought it's very interesting that to talk about this, right, क्योंकि I'm sure as in अब तो फिर भी बहुत जमाना चेंज हो गया है। हर कोई टिकटॉक बना रहा है, हर कोई वीडियोस कर रहा है, पाकिस्तान में भी व्लॉगर्स भर गए हैं, तो everyone understands के this is a thing. But when you were doing this in 2014, 15, तो कुछ भी नहीं था। I remember there being sketch shows जैसे हमारा दोस्त नादिर and You've done fucking well, man, because bullying is shit and fuck bullies, honestly. I don't know, man. You were a kid and you've still done pretty well fighting through all of that, because I've had a pretty shit bullied schooling time मेरे young days में, of course, and it अच्छा, sticks हमारे with टाइम you. पे जब bullies Sticks होते with थे you तो for it a wasn't while. even Yeah. for like our bullies weren't even because we were doing something cool और उनकी साइड थी, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। Yeah. You were at least Exactly. doing something. I mean, you नहीं, were like, making I something was- productive. हम तो बस हाँ। थे। So नहीं, नहीं। man, good job, man. Honestly, Thank अच्छे। you. बाकी सारे भाड़ में जाए यार। अभी यार देख के सर्दी होगी उनकी। था अच्छा। ना, एमिनेम का कोट था जो विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, हाँ, जो हाँ, मोहम्मद अली ने भी कहा था कि if you have bullies good that means you stood up for something. It's so surprising all these people said the exact same thing. Exact same thing. It's very Wow. surprising. You might as well add Circle Khan to this, you know. नहीं, हाँ, लेकिन मैं उससे अभी ज्यादा इतना कोई इफेक्ट अभी तो नहीं हुआ। हमने तो मतलब मैंने भाई क्या कहते हैं, वो था लिटरल मम्मी डैडी था कि मतलब कोई भी ऐसे थोड़ा होता था, शुरू होता था तो फिर हम चले जाते थे हेडमिस्ट्रेस ही तंग आ चुकी थी क्योंकि मैंने कोई 4 क्लासेस चेंज की थी इसी की वजह से। तो क्या कहते हैं, वो आगे थे, अबे यार आप इससे आपको कौन सी भी चाहिए, नहीं बची तुम्हारे लिए क्लासेस। नहीं, but of course, which was that person's job to not let this shit happen. Exactly, लेकिन वो नजर आ रहा था उनकी आंखों में हाँ, कि अजी यार not doing a fucking favor in helping a kid, मतलब Yeah, but you persevered and Yeah. आज देखो बस तुम TPR अम्मी आई वेरी अच्छी। None of those bullies will ever be on TPR. I can वो अलग बात है कि लोग हमें भी बुलीज कहते हैं, but वो अलग बात। वो एक अलग बात। यार मुझसे बिना वजह लोगों को नफरत है। अभी मैं नहीं, वजह तो है। I don't know, like I'm a good guy, bro. अभी मैं देख रहा था like पलवशा के Instagram पे हाँ, शज़ारम जरा आते हैं। हाँ। You know how future brides tag people on her page ke check karo photography and stuff. So some woman tagged her probably husband to be or something ke page check karo, and the guy commented कि मुझे इसका हस्बैंड ट्विटर पे पसंद नहीं है इसलिए नो।
अब मुझे देखो, मुझे ये मसला नहीं है कि people don't like me, मतलब ठीक है, लेकिन यार कोई वजह तो बताओ ना। Ali, I think we found the reason why his mood's been off. Guys, हमारे viewers, my mood is off today क्योंकि मैंने जापानीज करी बचा के रखी हुई थी कि मैं आज खाऊंगा और फ्रिज में, और आज जब मैंने खोला उसमें फंगस लगा हुआ था। in the fucking fridge. ये तो फीचर है उसका। man. तो उसके बाद बिजाइज के like a mature adult, I would look for dinner options कि यार चलो कहीं से कुछ ऑर्डर कर लो या कुछ और बना लो। अच्छा, तो मैंने कहा fuck everything, मैंने कुछ भी नहीं खाया। Nice. And I think if you do this sort of meal jumping thing, इससे diabetes बेहतर हो जाती है ना? I think it's recommended कि हाँ एक दिन 8 meal, एक दिन 0. So coming back to the Shahzad show. Oh Shahzad, you're here. So, acha, this is again now in the 2015-2016 phase. An interesting thing is you're vlogging at this point. Aisa lagta hai, I mean, he's our friend and he's a great guy and he makes great stuff. You know who we're talking about. But aisa Yes, lagta hai indeed. कि 2017 से पहले पाकिस्तान में YouTube था ही नहीं. Because 2017 is when Irfan Junejo came. And उसके बाद से बस इरफान जुनेजो की बात होती है. वो वेव आ रही है एक बहुत बड़ी. At least in the vlogging sphere. And this is obviously something he doesn't claim कि इसने पाकिस्तान में internet किया है, YouTube मशहूर किया है. He's very good at what he does and that is why he has his fame. But people have been doing this for a long while and I was interested in understanding कि उस ज़माने में before Irfan Junejo and after Irfan Junejo, what are some of the differences you have seen in people's acceptance of YouTube as a hobby, which is something you were doing first, and then eventually as a serious part-time thing and maybe as a job? Have you seen trajectory? माना कि तुम उस वक्त भी बहुत छोटे थे, not that तुम बहुत बड़े अब हो, but have you seen people's perception of YouTube change in your time? I have, oh wow, I definitely have. मतलब पहले होता था कि यार क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप ये करें, आप यार वापस स्किट बनाएं, आप ये क्या कहते हैं आंटी बन के दिखाएं, हमें दुपट्टा पहन के दिखाओ. ऐसे बहुत आता था, ये इतना ज्यादा आता था क्योंकि that was like the thing that was in कि आंटी बन आप दुपट्टा. Yeah, I don't understand why Pakistan is like that, man. I really don't know. क्या fetish पूरी हो रही है लोगों की. हाँ, basically यही कि भाई आंटी बन के दिखाओ, वापस sketches करो, और यही चलता रहता था. The biggest thing I saw in after Irfan Bhai, I guess, like after a year of Irfan Bhai in YouTube, the biggest thing I noticed was, I guess, because Irfan Bhai was so real and so himself. मतलब क्योंकि usually it was like, yo guys, आज हम ये करने जा रहे हैं, and then like this, and then we're gonna do this, और वो मतलब ऐसे कि आज हम उधर जा रहे हैं. मतलब it was like he was real. So I guess, I don't know what that was, and he talked a lot about his process, which is, I don't think what it was, but after that year, people were really interested in how I made my videos. Before उससे कभी ऐसा नहीं होता था usually कि मतलब process क्या है आपका. उनके बाद जो है, before this also, I'm sure कि before this, now this is again something we'll come to later on, मगर your videos do have like a lot of thought put into like the sequence, the effects, transitions, text, graphics वगैरह. So was this something that you had wanted to do like जैसे ही तुम्हारी you know वो बढ़ना शुरू थी, momentum, जैसे ही momentum बढ़ना शुरू हुआ था, or was it something you've recently gotten into? My whole, I guess, creative process has been very slow. मतलब बहुत आहिस्ता मुझे चीजों की समझ आने लगी. मतलब जैसे हाँ, पहले 2 साल मेरी प्रायोरिटी सिर्फ स्केट्स थी, और ये थी कि मुझे मतलब पहले 6 months एक्चुअली 6 months में डिफरेंस आया मेरे. मतलब पहले 6 months में ऐसा था कि I just liked making videos and it was just fun for me.
And then the second half of the year was like कि अच्छा इसके बारे में मुझे अभी थोड़ी और consistent होना है. And then फिर जो है मेरे लिए vlog series होने लगे as soon as I came to LA. और vlogs मैं consistently करने लगा और ये करने लगा. तो at that time my priority was to upload consistently. And then when 2017 started, then my kind of क्या कहते हैं priority began to maintain the quality of the, I guess, making the videos and also keep being consistent. तो ये जो editing और ये वाली सारे सीन है ना, ये मेरा शुरू हुआ था जैसे ही मेरी इरफान भाई की मैंने videos notice करने लगी. तो अच्छा. हाँ, the difference in his vlogs and most people's vlogs was that people usually क्या कहते हैं oversell their personality. वो personality oversell नहीं कर रहे थे. वो he was just being himself and he was also maintaining the edit aesthetic he had. और वो नजर आता था गानों के साथ बीट के साथ मैच की हुई है और गाने बड़े लो-फाई किस्म के हैं और क्या कहते हैं जैसे उनकी टाइपोग्राफी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हर बीट के साथ एक सिंपल बिल्कुल जुने जो लिखा था नीचे व्लॉग और फिर ऐसे करके तो वो बड़ी छोटी छोटी चीजें थी जो मेरे दिमाग में ऐसे नोटिस करता रहा मैं और दैट काइंड ऑफ लाइक इग्नाइटेड दिस कि अच्छा यार ऐसी चीज पे फोकस करना है Okay. हाँ currently this is a very common thing between you, Momina, and Irfan. All three of you have not oversold your personalities at all. I've noticed that Momina doesn't do it at all. It's just who she is. You don't do it. You don't either. Your personality is bigger than theirs. In that you're like maybe a more boisterous person yourself. Irfan बहुत like low volume person है. Momina bhi is not insanely loud in our video experience, but because I think एक तो तुम super nice बच्चे थे पहले, तो that एक वो वाली एक vibe आती है. फिर उसके ऊपर तुम्हारे comedy का शौक आता है. अली तुम्हारा मेरी personality के बारे में क्या है? Fuck your personality. चिकन काटसू करी जो है ना तुम्हारी मैंने फंगस लगाया था उसमें. Anyway, so what I was saying was you don't pretend to be someone else, which is also I think what Sarkhel is saying. You know, you're not like tadkaing your personality. This is just the way you have approached it. I guess maybe it's not about changing your personality, but it's about amplifying your personality because what you were saying is overselling. That same is amplifying. Which in Shehzad's case, I think it would actually work if he amplifies his personality. Oh, bro. When you've no, I'm just saying. I feel like because considering you have I guess a more flashier personality than the other two, if you already if something's already flashy and you amplify it, what's the worst that can happen? Bro, just like me. है ना? मतलब it's like Rizwan. मुझे Rizwan तुम्हारी जो Twitter personality है ना वो नहीं पसंद मुझे. तो हाँ I guess मैं YouTube से ज्यादा Instagram पे बहुत करता हूँ. जो स्टोरीज में ऐसे चिल्लाना और जो अपना ऐसे मतलब पागल हो जाना बेसिकली नाउ इंस्टाग्राम इज माय ब्लॉग बेसिकली उधर स्टोरी जो बनाता हूँ वो मेरा ब्लॉग है काइंड ऑफ और यूट्यूब इज दिस काइंड ऑफ जो आर्टिस्ट एक मूड होता है यूट्यूब वो बेसिकली तो क्या कहते हैं व्हिच मेक्स सेंस कंसीडरिंग कि शुरू में तुम you started out with sketches and the comedy aspect of it seems to be like something you really enjoy as a person, not just okay, YouTube ke liye this is a person I'll try to be. It's who you are as well. Acha, so after Junejo is what you're saying, you started really focusing on the process. The process. Speaking of process, I after watching your videos, I got really tired just thinking about your process. Like मैं थक गया, like इतना काम, इतने effects, I like यार थक गया हूँ मैं. Like I just can't imagine how long was it taking him to make that 50-minute video. Yeah. 6 months. कराची वाली. अच्छा हम आते हैं. सरखेल again एक तो shockingly सरखेल कुछ नहीं पूछता था but पिछले कुछ videos में वो खतरनाक सवाल ला रहा है लेकिन बीच में हम we'll come to this थोड़ा आगे जाके. अच्छा तो हम इरफान जुनेजो आ गया है and this is like a big sea change in Pakistan ka YouTube scene. Indeed. Now you're making an effort in like the process or tum editing or typography or stuff ki. Acha. Then comes the thing where यार शहजाद तो इरफान जुनेजो को कॉपी कर रहा है.
This is the point where I wanted to say कि ऐसा लगता है कि YouTube ही इरफान जुनेजो ने बनाया है पाकिस्तान में, which makes sense considering how much of an influence he has, but it's obviously not true. वो क्या सीन था? How did that come about? How did you deal with it? तो initially जो है, अब तो मैं एक वो हूँ, like वो है पीर इरफान जुनेजो है मेरे, क्या कहते हैं, पहले it was like अच्छा एक YouTuber है इरफान जुनेजो, like he is very nice. ये तो 2017 में initially, तो जब उनको पहले तो मैंने देखा था, तो क्या कहते हैं, I messaged him and हाँ मैंने ऐसी बात की कि सर अगर आप ब्लॉग देख ले ऐसा अच्छा लगेगा आपको, तो he's like मैं sure I'll check it out. और फिर मैंने मजाक में बोला, मैं ये पब्लिकली बताना चाहता हूँ, ऐसे मुझे हो रहा है बताने का चस्का लग रहा है कि मैंने फिर कहा कि यार अगर शाउट आउट दे दे तो अच्छा रहेगा, और फिर बैंक वाला इमोजी था, ठीक है, इंटेंशन नहीं थी मेरी वो, मुझे मेरा मजाक इंटेंशन था, क्योंकि लोग पीपल विल कम एट मी, अब अच्छा बोलता है बड़ा कि शाउट आउट नहीं मांगो, और अब जो है खुद मांगो वहां पे, तो ही वाज लाइक आई विल गिव यू अ शाउट आउट व्हेन आई थिंक योर वर्क इज गुड. तो हम जरा पूछते हैं इरफान से. हाँ जरा फोन लगाओ, जरा फोन लगाते. तो क्या कहते हैं वहां से फिर जो है मेरी बात शुरू हुई उनसे, और फिर बात होती रही. मैं उनको आई मेड अ ब्लॉग कि माय इंस्पिरेशन लाइक माय वर्क. ही मैसेज मी कि यार मैंने ब्लॉग देखे और बड़ा अच्छा लगा, तो वहां से ब्लॉग शुरू हुआ. और क्या कहते हैं वहां पे नॉर्मल था, बट देन केम द टाइम व्हेन आई मेड द ब्लॉग आई मेट एन इंडियन. एक ब्लॉग का नाम था जो मेरा सबसे बड़ा वो था चेंज इन 10,000 शो, मतलब 10,000 शो इज समथिंग एल्स. तब जो है मेरी, मुझे लगता है मैंने जेन्युइनली उनको कॉपी करना शुरू किया था, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्पिरेशन आ रही थी, तो मैंने फुल छापा, मुझे तो लगता है मैंने किया. और शुरू ऐसे हुआ कि आई स्टार्टेड टू आई गेस एक्ट लाइक हिम. एंड मेरा एक वो जो, क्योंकि उनका एक तकिया का नाम था ना सीन्स कुछ ऐसे, तो मैंने कहा यार मैं भी एक तकिया बनाऊंगा, तो और फिर मेरा बना चेक. I don't know what the science behind that was. It's really I cringe a lot when I, इसलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ. It's okay, अभी तुम यंग हो, गलतियां कर लो जितनी करनी है. तुम अभी अगले 10 साल तक यंग हो. बहुत टाइम है. It's fine, it's fine. हाँ, तो वहाँ से चेक बना, और क्या कहते हैं, I have no idea what the science behind check was. वहाँ से शुरू किया, तो I guess that was what made people think कि यार तुम कॉपी करते हो, क्योंकि this was the thing I really oversold. I might have not oversold my personality, but I did so sell check हर लाइन के बाद check आती. मैं अभी तंग आ चुका हूँ जब कोई बोलता है, वो मुझे लगता है वो था. और फिर वहां से जब इरफान भाई की इतनी मैंने वीडियोस देखी थी, तो I kind of like I guess मतलब उनकी जैसे काइंड ऑफ एक्ट करने लगा. और you subconsciously copy someone's personality. Exactly, I guess. हाँ, if you absorb a lot of their work. वहां से फिर शुरू हुआ, और फिर जब मैंने वीडियो बनाई आई कॉपी इरफान जुनेजो, तो वो ऐसी हिट हुई. ओह, उसके बाद तो मतलब ऐसी मुझे लगा था ये अच्छा वाला हिट होगा, लेकिन उसके बाद तो कॉन्स्टेंट एक साल तक सिर्फ कॉपी के ही कमेंट आते रहे. अजीब. अच्छा, इससे पहले लोग कह रहे थे, or is it something you realized yourself? इससे पहले कम कह रहे थे, लेकिन कह रहे थे. Like I used to notice it, but after that इतना notice हो गया कि होता था कि अच्छा ये तो होता रहता है. ये इतना मतलब I copy इरफान जुनेजो was like a bittersweet thing for my own self-respect, I guess. और नहीं, स्पेशली जैसे हमारे लोग हैं उनको वो मिल गया ना, देखा मैं कह रहा था. मैंने बोला था. But then वो ये कि what you and Sarkhel said, it is a valid thing कि you might not want to copy someone intentionally or consciously, but like you said, if you absorb a lot of their work and you like it, so then you know subconsciously भी कभी कभार उस तरफ आ जाता है. But then अच्छा चलो, then what happened once you realized this? Once I realized, okay, so initially when I मतलब इसके बारे में मैं ऐसे बात करूंगा कि जैसे शुरुआत हुई ना मेरे इस 10,000 शो की, तब मेरे अंदर एक I don't know what it was, but I guess it was just the person I was built through the city school experience. I didn't give a damn about what people said. Instinctively मैं नहीं देता था, कोई परवाह नहीं होती थी मुझे कि लोग क्या कहते हैं. Puberty होती बहुत है. लोग कहते थे. तो एग्जैक्टली, तो वहां से फिर जो है जब वहां से मुझे था ही नहीं, परवाह थी नहीं. मुझे रिलेटिव्स कहते कि बेटा ऐसे करो, इंग्लिश में वीडियोस बनाओ. अभी तक कहते हाँ बनाएंगे. तो कोई क्या कहते हैं. हाँ, तो स्ट्रिक्टली मेरे अंदर थी नहीं परवाह. लेकिन वंस
I don't know what happened. Once I started to notice these comments, and once I Yeah. started to notice the fact that I have an audience and they have something to say, then it was in 2017. तो फिर मुझे काफी ये चीज I guess affect करने लगी. I tried to be anything but like him. Yeah. क्योंकि वो आ गया था पे कि अबे यार अच्छा कॉपी नहीं हुआ. Yeah. मैं पता नहीं, I was just being very interesting experience था वो. उसके बाद जब पाकिस्तान आया मैं, तो फिर it was kind of loose break. सही है. तब मेरा इतना फोकस नहीं था कि कंटेंट कैसे बन रहा है. उसके बाद मैंने नोटिस कर लिया, मैंने परवाह करनी छोड़ दी थी कि मैं इरफान भाई जैसा लग रहा हूँ या नहीं, और नहीं लग रहा था. दिस वाज द टाइम ऑफ 2018. तो मिशन शादी एंड मतलब जो भी कराची 2017 में जो ट्रिप था, तब मेरा जो है ये काइंड ऑफ खत्म हो गया था. लेकिन फिर दोबारा आया जब मैं अच्छा. अमेरिका वापस आया 2018 में. So the first half of 2018, I thought that was the most when I seemed like not myself, I guess. This is like Whoa. in your own eyes. Well, in my own eyes too, but like also some people made me realize that I was not really being myself. तब जो है मैंने ओवरसेल की थी अपनी Oversell, पर्सनालिटी, अच्छा. और वो पर्सनालिटी असली थी भी नहीं. वो ऐसे कि वही चैक वाव 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 और ये सारी जो थे ये बहुत जानीज ऐसे करके Yeah. जो है ना, बहुत चिल्ला के मैं बात करता था. एंड इट वाजंट जस्ट मी. एंड फिर जो है कि वीडियो आई सॉरी जानीज के नाम से, जिसमें मैंने बेसिकली इसके बारे में बात की कि मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं फेक हो रहा हूँ, लेकिन हम हो रहे थे. तो अभी हम जो है क्या कहते हैं, अभी आई ट्राई टू नॉट थिंक अबाउट दैट टू मच. तो व्हेन आई डिडंट, फिर वहां से फिर 2018 का सेकेंड हाफ जब शुरू हुआ ना, तब से मुझे लगता है कि तब जो है मेरा तब से जो फेज चल रहा है वो अभी तक अभी नॉर्मल है. अभी करंटली आई एम एट द बेस्ट रेट अल्हम्दुलिल्लाह of the Shazad show. मुझे बताओ, how many people did you have? How many followers did you have at the I Copy Irfan Junejo point 1000 something. on YouTube? Yes, I remember this specifically. No, not specifically, लेकिन सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि अगली वीडियो थी Thank you for 2000 subscribers. अच्छा. And then how many subscribers did you have at the I'm sorry Johnny's video? यार मुझे याद नहीं है, लेकिन I think it was like 15,000 or something. At that point now, these are at least 2 videos you have made. Deep सवाल आने वाला है. 2 Right. videos you have made explaining your personality and thought process to your audience. Why did you think it's important to explain your thought process to your viewers? So why are you doing this? What is your relationship to your subscribers Wow. that you're doing this? Damn, that's फंस amazing. फंस गया बच्चा, फंस गया. Bro! ये दो नहीं डीप सवाल आया, हम और डीपर जवाब देते हैं इसका. Yeah, yeah, मुझे लगता है, अच्छा हाँ, ये वो वाला फेज था जब मुझे ये बड़ी परवाह थी कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं. ये वही आ जाती है बात कि मतलब इंस्टिंक्टिवली शुरू में मुझे नहीं होता था, लेकिन फिर ये जब बहुत ज्यादा आने लगा, आई गेस बिकॉज इट वाज जस्ट ऑल एट दैट आई वाज सीइंग, ऐसे इग्नोर करना पड़ता था क्योंकि ऑनलाइन नहीं आता था मुझे हेट. मुझे आता था लाइव बुली के थ्रू मुझे हेट आता था. कभी कमेंट्स में नहीं आया था, लेकिन अब कमेंट्स में आ रहा सिर्फ, और दैट्स ऑल आई वाज रिसीविंग. सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज काइंड ऑफ अफेक्टिंग. देन आई गेस आई फेल्ट द नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ a lot of times. मैंने बहुत ये सिर्फ ये 2 दफा नहीं है, मैंने कोई 10 वीडियोस बनाई है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ. एक तो ये बड़ा yeah. है ना मेरा, ये है कि भाई तुम कंसिस्टेंट नहीं. अब तो मुझे है ही नहीं, टके भी परवाह नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ साल तक वीडियो. द नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ अराइज बिकॉज आई जस्ट थॉट कि यार लोग मेरा गलत इंप्रेशन ना लें, और ऐसा ना हो कि यार नहीं ऐसा नहीं हूँ मैं ऐसा हूँ एक्चुअली. नहीं अच्छा ऐसा भी नहीं हूँ, मैं ऐसे इसलिए कर रहा था क्योंकि ये अब मुझे मैं वैसा कर रहा हूँ जैसा तुम्हें समझ में आया ना, मैं वैसे ही कर रहा हूँ. तो अब काइंड ऑफ हाँ, it was a bad, I don't think it was the best decision to make those videos. It was a nice lesson. Like उसमें एक और लेसन था जो कि अच्छा था कॉपी इरफान में, कि कॉपी और इंस्पिरेशन का फर्क क्या है. Yeah. लेकिन आई कॉपी वाला जो है ना, वो उसमें ये आ जाता है कि यार मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आई गेस इट वाजंट रियली अ गुड डिसीजन टू मेक दोस वीडियोस, बट आई एम ग्लैड आई मेड देम, क्योंकि वरना अब पता चल रहा है कि नहीं करना चाहिए. Sure, and even I mean, because like thousands of people are following you, subscribing to you. I keep saying follow because I think in Twitter terms, but you have like thousands of subscribers and you're making stuff और नीचे उनके comments आए जा रहे हैं. This is something huge entertainers also face. Like Conan O'Brien on his podcast often talks about, you know, मेरे लाखों अच्छे reviews आएंगे,
एक मैंने पढ़ लिया ना अगर negative, that's the only one I will remember, the only one I will fixate on, and he's like a legend. So it Yeah. makes sense, but it makes sense that this happens, but also I think it's important maybe to recognize the effect this is having Exactly. on you, on yourself, Exactly. so that you're just better prepared to deal with it. You know, you can still care about what they say, but Really. it doesn't have to be all you care about, because then फिर ऐसा होगा कि then you're just making videos क्योंकि लोग देख रहे हैं, not because you want to, and then you start to lose your interest. इस तरह की बातें, you know. Yeah, this is like, we're not scientists, we're just old. So हमने बस कर लिया ये. अच्छा. Shizad, then another thing you mentioned now, I think this ties into the things that we're mentioning. We're talking about doing things for the audience, considering your own style. Then you started talking about this process of being in the moment. ये बहुत ज़िक्र आने लगा था videos. So how did that, usually when someone says this, it's because like what you said, what Irfan also said, कि मैं कहीं भी बैठा होता हूँ दोस्तों के साथ, कोई अच्छी सी बात करे, ये वो, तो लाइक यार अगर मैं ये व्लॉग में डाल लेता तो क्या जबरदस्त बात हो जाती है इस तरह. Is that something that you started seeing in yourself as well? I did. I felt like living in the moment वाली बात ही आती है कि यार, even though I was my most realist when I had the camera on, मतलब वो कोई मुझ में कोई चेंज नहीं आता था, लेकिन I guess it was the awareness कि यार कैमरा है मेरे पास और मुझे जो है ये रिकॉर्ड करना है और मुझे कुछ ऐसे एंटरटेनिंग करके ऐसे फनी होना है, वो I kind of lost myself there, I think. मुझे हो रहा था कि यार इन द मोमेंट वाली बात आप तभी करते हैं जब आप आउट ऑफ द मोमेंट होते हैं. ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट टू रियलाइज दैट यू आर लिविंग, बट इट्स नॉट यू हु इज एक्सपीरियंसिंग द लाइफ यू आर लिविंग करेंटली. इट्स जस्ट टाइम फ्रेम यू आर कैप्चरिंग फॉर द व्लॉग. मतलब इवन इफ इट्स नॉट योर इंटेंशन कि आप व्लॉग के लिए ही वो मोमेंट पर्टिकुलरली बनाए, लेकिन आई फाउंड माई सेल्फ कि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा था व्लॉग के लिए और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे करनी. दैट काइंड ऑफ आई गेस ट्रिगर्ड इट. और लिविंग इन द मोमेंट, अभी लेटेस्ट जो नई वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी यही बात आई कि लिव इन द मोमेंट. हाँ, मुझे लगता है कि बहुत घेरे हुआ था मैं, और बहुत अभी तक लोग घेरे हुए हैं इस चीज में कि यार सब कुछ रिकॉर्ड करना है हमें ताकि याद रहे. मेरा कभी भी ये इंटेंशन नहीं रहा है कि यार मैं कोई व्लॉग बनाऊं या कोई वीडियो बनाऊं ताकि मुझे याद रहेगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा ना, वो क्योंकि मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ये अवेयरनेस होगी सबकॉन्शियस माइंड में कि यार ये वीडियो पड़ी हुई है, ये मैं जब भी देख सकता हूँ उसको, तो वो मोमेंट कभी याद आएगा ही नहीं. लेकिन ऐसे जो आप रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन बड़े खूबसूरत से होते हैं, वो याद रह जाता है हमेशा. तो आई गेस ये मुझे एक रियलाइज आई, तो इसलिए मैंने वो बात करना उसके बारे में शुरू कर ली. On that point though, तुम कभी वापस जाके अपनी वीडियोस देखते हो खुद, like बहुत ये मेरा एक point था, because he's made several recaps of his whole career till that point. Yeah. And then क्या change आया ये वो, तो मतलब boy full देखता है. नहीं, but you actually watch them, which is a good thing, क्योंकि like, I guess a lot of people try documenting a lot of stuff in their lives, like fireworks ki videos and concerts ki videos, and they probably don't watch them again. But this is something more meaningful that you can watch again, huh? Yeah, that is nice. I guess. That's cool. I guess I don't like really watch my first initial. मतलब I used to. तो एक टाइम आया था जब मुझे अभी कुछ महीने पहले ही मुझे आया था यार मैं अपने इनिशियल व्लॉग देखता हूँ कि मैं इतने परवाह कैसे नहीं होती थी मुझे बहुत सारी चीजों की. मतलब अगर आई होप फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है देखा होगा आप लोग. लेकिन मैंने देखा. I thought you were 8 years old or something. Believe me, I was 15. So Yeah. exactly. तो वो लगता नहीं था ना, वही तो ये इसलिए तो होते थे bullying. तो that was just, and I मतलब even though it was really cringy and I admit it is cringy, it was just who I was at that time and I enjoyed being that. Which is fine. Yeah. I thought it was pretty wholesome actually. It would be cringy. It would be cringy if you tried to be that way now, because this is not who you are. Exactly. But you know, this is who you were then, and you were just being genuine. Yeah. वही ना, वही तो. और मुझे यही होता था कि
यार मैं इसलिए पिछली वीडियोस अपनी पुरानी देखता था कि यार मैं मुझे कैसे परवाह नहीं होती थी, क्या करता था मैं. आई गेस दैट रियलाइजेशन मेक्स यू रियलाइज कि चलो अब पता चल गया कि क्या नहीं करना है. लेकिन उस वक्त वैसा था, तो इसलिए मैंने कभी अपना ये नियत नहीं रखी कि यार मुझे वो करना है या ये वीडियो प्राइवेट करनी है. ये कभी नियत मेरी नहीं बनी. इसलिए लिविंग इन It द मोमेंट. is also a thing ke with age and experience, like things start looking very different बहुत जल्दी. Like हमारे साथ स्कूल में ऐसा होता था, O levels या A levels में जब तुम जाओ, मेरा O levels for example city school में O levels was 9, 10, 11 when I did it 20 years ago. तो उसमें ये था कि in 11th grade 9th के बच्चे इतने छोटे लगते थे कि you're like fucking ये लोग स्कूल कैसे आ गए. And then you go to A levels which is 2 years and you get to A2 or A1 के बच्चे लगता था कि oh my, these guys should not be out alone. कैसे आ गए. And which is, that's exactly where you were just 1 year ago. And what you're talking about is like several years ago, and you were actually much younger then in a whole different place. So I mean, it seems that you are aware and it's not a problem for you, but it shouldn't be for anyone. Because it was like कि मेरी, अच्छा आपका ये मुझे नहीं पता था क्योंकि ऐसा सीन हमारे साथ नहीं था. हमारे साथ ये था कि मेरे से छोटे बच्चों की दाढ़ी थी. सरखेल आप बुरा ना मानिएगा. I can relate so hard, man. सरखेल ने ये जो आपकी शक्ल देख रहे हैं, इन्होंने 6 महीने से शेव नहीं की है और माशाल्लाह से आप देखें कितनी दाढ़ी निकल आई. 6 महीने से ये 28 साल की ये मेहनत है सारी मेरी. नहीं सरखेल की बचपन में एक्चुअली दाढ़ी थी. It was an accident. Radioactive incident. I was bullied so hard. Sarkhel has a question about Shahzad's videos. यार देखो Shahzad song selection in videos is amazing. Is actually amazing. Thank you, Sarkhel. जो Dear Karachi में the song you started off with was my wedding video song. Really? Nusrat wala hai na, Longing है. Nusrat the director. Yeah. So and then later in the same video he had an alt J track. She's like, bro, if you go into his video description, bas list hai licenses ki. I didn't look at the list, so that's what my question was. How the fuck is he doing this? Like, what loophole are you doing? That when I tried to watch, you know, I video because पहले जब आई थी ना नहीं तो उस वक्त मेरे पास चल गई थी. मैंने कहा अच्छा ये बहुत लंबी वीडियो है, मैं देखता हूँ जरा. फिर when I came back to it, it's like this video is not available in your country. So Shahzad, what's the scene with the music? ये सबसे मेरा फेवरेट सवाल है कसम से पूरी दुनिया में कि म्यूजिक सिलेक्शन, क्योंकि मेरे लिए बहुत नेसेसरी होता है. गाने जो है ना उन पे मैं बहुत फोकस करता हूँ. आई लिसन टू सॉन्ग्स ऑन रिपीट फॉर वीक्स, लिटरली. सही है, वीक्स तक मैं सेम ही गाना बार बार सुनता रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा क्रिएटिव प्रोसेस इस तरीके से काम करता है. मैं गानों को सुनता हूँ और फिर गानों से मुझे नैरेटिव बनाने के आइडियाज आते हैं कि किस तरीके से मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ. हाँ, तो लॉन्गिंग का ऐसा सीन है कि ओरिजिनली इट वाज क्या कहते हैं, मैंने द अदर नवीद, इफ यू गाइस नो हिम, ही इज एन अमेजिंग स्टोरी टेलर. हाँ, तो उनकी एक वीडियो में मैंने ये गाना सुना था लॉन्गिंग, एंड आई वाज लाइक ओके दिस गिव्स मी सम वाइब ऑफ, specifically I guess the lyrics might have been suggestive कि अच्छा कराची तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा. वो भी that whole album with Michael Brook is amazing by the way. मैंने वो Spotify पे पूरी ऐसे एकदम फुल हम ऐसे विंडो के बाहर देखने वाले मूड में. पीछे की कहानी बस ये है कि मुझे परवाह नहीं है. आई गेस मुझे परवाह खत्म हो गई थी मिशन कराची बनाने के बाद. मिशन कराची जब बना था उसमें पहला गाना मैंने जो है बगैर परवाह के इस्तेमाल किया था वो था लेके पहला प्यार. और छूकर मेरे मन को, वो ये दोनों मैंने इस्तेमाल किए. लेकिन ये बहुत टिपिकल था. मिशन कराची वाज अ व्लॉग, इट वाजंट लाइक समथिंग एल्स फॉर मी एट लीस्ट. बट डियर कराची का ऐसा है कि उसमें दैट वाज अ डिफरेंट इवन एक्सपीरियंस फॉर मी लिटरली. तो उसमें जो गाने इस्तेमाल किए थे वो बगैर परवाह के मैंने इस्तेमाल किए थे. जैसे कहीं ऑल्ट जे का आ जाता था, कहीं एक रशियन गाना आ जाता था. जब मोमिना से मैं मिलने गया था, वो जो ट्रैविस स्कॉट का भी आता है. ट्रैविस स्कॉट का भी आता है एग्जैक्टली, और फिर अली सेठी का भी आते हैं, और फिर मेहदी हसन का भी आता है. तो मतलब बिल्कुल अजीब. तो मैं बड़ा पर्सनली भी मैं ये इन गानों को वैसे भी सुनता रहता हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट इन म्यूजिक इज डाइवर्स. एंड
when I listen to music, I imagine a lot of scenes in my mind. A lot of film ideas have came to me by listening to just songs. Where the Hood Same. At से मुझे एक बड़ा ही कोई intellectual गाना movie idea है जो DMX का गाना है ना, Where the Hood At. उससे मुझे एक full एक idea तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ा interesting है, लेकिन engineering से related एक film का idea आ गया. तो बस ये है कि एक फीलिंग मुझे निकालनी होती है तो फिर मैं So how does it work with regards to YouTube का licensing और copyright strikes? licensing. ओके हाँ. तो उनका ऐसा सीन है कि वो अगर आप एक गाना इस्तेमाल करते हैं जिसकी आपको इजाजत नहीं है तो रिकॉर्ड लेबल कॉपीराइट क्लेम लगा देता है. तो क्योंकि क्लेम और स्ट्राइक होता है ना, स्ट्राइक से आपके चैनल इफेक्ट होता है, क्लेम से सिर्फ आपको वीडियो से पैसे नहीं मिलते. मुझे इसकी जेन्युइनली डीप हार्टेडली परवाह नहीं है. जिसको मेरे दोस्तों को इस चीज से बड़ा अख्तलाफ है कि भाई तुम पैसे इतने बना सकते हो लेकिन इस्तेमाल, मुझे है ही नहीं इसका. तो एक अगर स्टोरी बता के मुझे एक फीलिंग एग्जीक्यूट हो रही है तो वो ही मेरे लिए काफी है. वीडियो पे although I demonetize, I am also starting to think to demonetize my channel क्योंकि ताकि एड्स नहीं है. मैं सोच रहा था लेकिन मेरे दोस्त रेकमेंड नहीं कर रहे क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है पैसे कमा सकते हैं तो क्यों नहीं कमाए. लेकिन मुझे नहीं लगता अब मैं कमा सकूंगा क्योंकि मेरी हर वीडियोस में अभी कॉपीराइट वाले गाने लगेंगे क्योंकि मुझे एक फीलिंग निकालनी है ना, वो उन्हीं गानों से निकलेगी. तो इस पे कोई लगे कोई 14-20 कॉपीराइट क्लेम और एक भी पैसा नहीं मिला. लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि बहुत सारी एड्स हैं. ऑब्वियसली इट्स 50 मिनट तक की वीडियो तो मतलब हाँ, तो वो कॉपीराइट क्लेम का यही चक्कर होगा ना कि the person with the license is putting the ads in the video because वरना वो कैसे पैसे बनाएंगे. Exactly, हाँ. तो वो मतलब I guess it's fair for me because I'm using your song and you're earning the money through it. So I guess it's fair. Acha, so this is a good pivot now because we're talking about the Mission Karachi video. I need to talk to you about how you shifted towards making these longer videos. There's a 39-minute video or 21-minute video. For sure. बट उससे पहले मुझे ये बताओ ब्रो, आमिर भगत का क्या सीन है? आमिर भगत मुझे लगता है कराची व्लॉगिंग सीन का कोई गॉडफादर टाइप गेम. आई मीन इरफान की वीडियोस में आया, we've been to his house, our first video podcast was at his house. Oh हाँ, our first video pod. Yeah. सब सही है पर ब्रो मतलब उसकी मुझे लगता है पहुंच जो है ना उस बॉय की, because he is showing up in so many people's videos and then did a एक किस्सा challenge thing with I'm like आमिर भगत सेमिनार्स कर रहा है, लोग 50 बॉयज बैठे हैं, क्या सीन है? जी. What was ये that सीन whole था एक्चुअली. अब उतना अब नहीं करते, अब उन्होंने छोड़ दी वो एडिट मीटअप्स बेसिकली करते थे. तो उनकी जो मेरी परसेप्शन है एडिट मीटअप की, वो उनने इसलिए शुरू किया था क्योंकि ही रियलाइज्ड दैट पीपल हैव टू मेनी क्वेश्चंस एंड दे आस्क एट द रॉन्ग प्लेटफॉर्म कमेंट्स में, जो कि रिप्लाई नहीं करते आधे से ज्यादा यूट्यूबर्स. तो उनने सोचा कि यार एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पे जेन्युइनली ये लोग आते हैं और ये लोग लाइव हमसे पूछते हैं. इतना शौक है ना इनको पूछने के, लाइव पूछे और हम लाइव जवाब देते हैं. तो क्या कहते हैं, वो उन्होंने इसलिए शुरू किया था एडिट मीटअप. एडिटिंग के बारे में बातें, टेक्निकल चीजों के बारे में बातें, व्लॉगिंग के बारे में बातें. बट आई गेस ही स्टॉप डूइंग इट बिकॉज अच्छा मजे की बात, जैसे ही मैं कराची गया ना, उनने बोला था कि मतलब जब तुम आओगे ना अभी कराची तो फिर करेंगे. और जैसे ही कराची गया तो वो उनका लास्ट मीटअप कर चुके थे और उसके बाद तो ये सैड सीन है. लेकिन उनने छोड़ इसलिए दिया क्योंकि पीपल weren't realizing the real point of it. People were going there for just for the vlog. आप सर्च करें आमिर भगत मीटअप, उधर इतने सारे व्लॉग ऐसे भरे पड़े होंगे, इतने 100K व्यूज, फीचरिंग इरफान जुनेजो, गुरु, ऐसे जो टाइटल क्लिकबेट फुल. तो दैट वाजंट द रियल पॉइंट ऑफ हिज मीटअप. तो उन्होंने एक नो सेल्फी रूल भी निकाला जिससे यू कैन टेक सेल्फीज एंड नो व्लॉग रूल फिर निकालना पड़ा. फिर जो है I guess he lost interest in it because people weren't coming for the real reason. Okay, हम जरा आमिर भगत पे ना इन्वेस्टिगेशन जरा हम बैकग्राउंड में चलाएंगे. ये बंदा जो है ना, he is shockingly connected. अच्छा, so now pivoting towards अच्छा sketches से हमने vlogs बनाया, vlog में हमने issues देखे. Now recently, and by recently I mean in 2019, you have made like a few long form videos. जैसे there was Mission Los Angeles थी, और फिर एक और there was a Karachi video which was 21 minutes, but then recently एक और तुमने super long Karachi video बनाई है, which is like nearly an hour. हाँ. So how and why firstly why did you think about making these super long videos? Because usually things that people tell us
is कि bro तुम लोगों के podcast तो घंटा 1.5 घंटा 30 minutes से करो, audience की attention रहेगा. I was like, bro, Attention okay. span. Oh Yeah. God. And then you're going from like 5, 7, maybe 10-minute vlogs to like half an hour, an hour. Oh, Yeah. So how did that shift come about, and So- how's that been going? okay. It has been going amazing so far because personally I love making long videos. Even though if I don't like watching them, I have to admit I don't really like watching long videos. लेकिन मुझे बनाने का बहुत शौक है तो तुम ये नहीं क्योंकि देखोगे. नहीं ये तो देखेंगे हम कितने साल से सोचते हैं. लेकिन क्या कहते हैं यूजुअली लॉन्ग वीडियोस देखने का मैं इतना आदी नहीं हूँ. पॉडकास्ट लेकिन बहुत देखता हूँ. वहां पे शुरू ये इसकी ऐसा हुआ कि ओरिजिनली मिशन लॉस एंजलिस वाज सपोज्ड टू बी इन 3 पार्ट. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है ना. तो राउंड 1 का अलग एपिसोड, राउंड 2 का अलग, राउंड 3 का अलग. और ये अगर करता भी ना मैं तो सिर्फ इसलिए करता क्योंकि यार जाहिर सी बात है ऑडियंस का अटेंशन स्पैन इतना नहीं है. लेकिन मेरा उस वक्त एटीट्यूड ये था कि यार ऑब्वियसली मैं नहीं बना सकता जी, मुझसे नहीं होगा. एक लंबी वीडियो मैं सोच इट वाज लाइक इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक अ क्रेजी आइडिया टू डू इट. लाइक कि भाई 40 मिनट्स की वीडियो, पागल हो क्या? YouTube पे 40 मिनट क्या तुमने दिमाग खराब पहले हो? से सोचा हुआ था कि 40 minutes की होगी? नहीं, पहले अच्छा. सोचा ही जब बना रहा था ना. इट वाज लाइक आई गेस क्या हाफ वे देयर कि मतलब लाइक राउंड 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था. आई वाज लाइक कि मैंने उसकी आउटरो भी बना दी थी राउंड 1 की. इट वाज लाइक ऑलरेडी रेडी काइंड ऑफ एज अ सेपरेट एपिसोड. बट देन क्या कहते हैं, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स सारा, जिनको मैंने डियर कराची डेडिकेट किए, उसके बारे में बात करनी सवाल है. है. तो हाँ. हाँ, उसका सवाल है उनका. तो क्या कहते हैं, उन्होंने उनसे मेरी इसके बारे में बात की. तो शी काइंड ऑफ everybody I asked was like कि यार अटेंशन स्पैन इतना नहीं होगा, तुम पार्ट्स में बना लो. लेकिन there's like always there's an instinct in you which tells you कि यार मुझे कुछ सुनना है लेकिन कोई सुनाने वाला नहीं है सिवाय मेरे. तो वो सारा थी. उन्होंने बोला कि यार तुम्हें लंबी वीडियो बनानी है. मैंने बोला हाँ बनाओ. मैंने कहा चलो सही है. फिर जो है सेठ साहब भी आए, फिर बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने भी यही चीज बोली. मैंने फिर कहा कि जाए अटेंशन स्पैन लोगों का तेल लेने, मैंने लेना है उनका अटेंशन स्पैन. तो फिर मैंने ये जो है But It's the first time I've ever heard this. ये अमेरिका जाके ना इसको तेल obsession invasion तो वहां से मुझे हुआ, ने ऑडियंस का तेल निकाल लिया. हाँ, मैंने कहा यार ऑडियंस का अटेंशन जाए तेल लेना, मैंने ये बनानी है किसी भी तरीके से. और मैंने फिर जो है 1 महीना लगाया. आई रिस्क माय होल स्टडीज फॉर दिस एंड आई हैड टू रीटेक माय होल इंग्लिश. That looks like a theme. इस करियर में स्टडीज की खैर है. कसम से यार. Yeah. ओह माय गॉड. देखिए बच्चों अगर आपने जिंदगी में कुछ बनना है आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी. Okay? What? No. Not where I thought this was going. Best advice ever. तो अच्छा. हाँ आई गेस वहां से फिर ये हुआ. तो मेरा हुआ कि यार मैंने अपना पूरा इंग्लिश एक्सरसाइज, मैं इंग्लिश में फेल हो गया इसकी वजह से. क्या कहते हैं मुझे फिर, हाँ आई नो, मुझे रीटेक करना पड़ा क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया था इसकी वजह से. आपको आई हैड टू रीटेक इट एंड खैर. तो वहां से मिशन लॉस एंजलिस ये शुरू हुआ. एंड वहां से जब ये मिशन लॉस एंजलिस बना, उसके बाद 2019 में मेरी जो भी वीडियोस आई वो मेरे दिल से नहीं आई थी बिल्कुल भी. वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती आज तक. टिल मिशन कराची से लेके मिशन लॉस एंजलिस से लेके मिशन कराची के बीच में जो भी आया ना, वो मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता. लंबी वीडियो का चस्का लग गया था. चस्का ऐसा लगा था, मैं क्या बताऊं. इतनी ऐसे एडिक्शन है यार. बहुत मुझे जो है ना ऐसे टाइम जाया, बहुत टाइम यूटिलाइज करने मुझे वो चाहिए ऑडियंस की, वो जो होते हैं ना एक्टर कि यार कहाँ है. तो आई गेस वो भी था कि आई वाज जस्ट थ्रोइंग फुटेज आउट. आई हैड सो मच फुटेज कलेक्टेड that I was just like यार एडिट करके निकालो. और मैंने अपना ओरिजिनली कुछ बनाया नहीं था, मैं तो एडिट करके निकाला क्योंकि मिशन लॉस एंजलिस वाला इतना टाइम लग गया कि उसमें बहुत सारी फुटेज जमा हो गई थी. इट टुक लाइक 2 months टू एडिट मिशन लॉस एंजलिस. तो फिर जब पाकिस्तान आया तो मिशन कराची भी बहुत बहुत मुश्किल से बना. क्योंकि मैंने उसकी एडिटिंग कराची में आके शुरू की. मतलब आप क्या बात, ये वेकेशन
हो गई ये तो बहुत ये इसके बारे में तो था डीए कराची बेसिकली, लेकिन क्या ये पूरा कनेक्टिंग एक सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। आर्क चल रहा है इंडीड। तो क्या कहते हैं मिशन कराची का फिर जब बनाया मैंने तो उसके पीछे की तब तो मुझे थी नहीं पता कि यार लंबी वीडियो बनाओ छोटी वीडियो। अब तो वो आ गया था मिशन लॉस एंजल्स के बाद कि यार शहजाद भाई आप लंबी वीडियो बनाओ आपकी अच्छी लगती। तो अच्छा वो क्या था, was there like a positive response to it जब 39 मिनट वाली वीडियो आई थी तो how did it go with the audience? It went like wait what 40 minutes ऐसा भी होता है, लेकिन जब देखी तो उनने तो they were like okay this might be a thing, you know this can be done, this is pretty interesting. बहुत सारे आधे कमेंट्स ऐसे थे कि एक आर्ट बाय वासे है ना, उन्होंने कमेंट किया था कि 40 मिनट एक साथ इतना गुस्सा तो क्या कहते हैं ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे which were like wait why is it so long, but I guess when they watched it they kind of realized it okay अच्छा ये ऐसा करता है, and then it's now kind of my thing to make long videos. And then when I came back to LA तब जो है बड़ा एक अजीब सा टाइम ऐसा होता है ना कि आप वेकेशन से गुजरते हैं तो वेकेशन से होके आते हैं और फिर घर आते हैं एंड इट्स लाइक ओ अच्छा बैक टू लाइफ आई गेस। वो बैक टू लाइफ जो होता है ना वो बड़ा बुरा सा लगता है। तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया मेरा। वहां से फिर मुझे आइडिया है कि यार अब क्या करना है, मतलब ये व्लॉग बनाऊं, क्योंकि ओरिजिनली मैंने व्लॉग तैयार कर लिया था नेक्स्ट। इट वाज लाइक 5 मिनट्स हो गए थे, बन गए थे। इट वाज जेन्युइनली अ व्लॉग। DA Karachi was supposed to be in like 15 different parts, लेकिन क्या कहते हैं वो मैंने हुआ कि यार अच्छा मुझे इसको भी लंबी वीडियो बनानी है। मैंने सारा को कॉल किया, मैंने कहा कि देखो मुझे एक और क्रेजी आइडिया है 50 मिनट की बनानी है तो क्यों मुझे पता है वो हाँ बोलेंगी, उन्होंने बोला तो यस सही है ओके रीअश्योरेंस तो क्या कहते हैं फिर लेकिन मैंने किसी और को नहीं बताया था। तो वहां से फिर जब DA Karachi का शुरू हुआ तो it itself was a different experience man। मतलब मैं कसम से वो जो आइडियाज की एक शिफ्टिंग हुई ना, इनिशियली इट वाज सपोज्ड टू बी जस्ट अ व्लॉग नॉर्मल, उसकी कोई स्टोरी बिहाइंड कोई नैरेटिव क्रेजी नहीं था। लेकिन फिर जो है मैंने एक दोस्त से बात की, साद जिला भाई, वो ट्विटर पे बड़े हैं चलते हैं यस वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, he's like shout out to Saad Zilla yes shout out friend of the podcast yeah वो मुझे बड़े अच्छे दोस्त हैं और he's like a big brother to me and he told me I talk to him a lot when I have these like creative blocks or something। तो क्या कहते हैं उसको मैंने इसके बारे में बताया था और उनने एक जो My food's here, I'm sorry. BRB. मैं भी म्यूट कर लेता हूं। मुझे वहां से अच्छा हाँ originally it was just supposed to be a vlog, but then when I talked to Saad bhai I was talking about how it's not turning out how I want it to be। मतलब एक vlog लग रहा है, vlog मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ different चाहिए। मुझे this is after you've gone to Karachi and you've shot और अब तुम edit कर रहे हो। जी अब मैंने DA Karachi पे काम करना शुरू किया, like I guess edit से ही काम शुरू किया। मसला ये था I didn't do the creative procession as I like to call it। Yeah because this is something just to interrupt you, this is something you mentioned I think in an earlier video also कि मैं सब कुछ shoot कर लेता हूँ और फिर edit के अंदर I find many directors do this as well कि they have a storyboard but they don't go shot to shot, scene to scene, they shoot everything and edit में they find the narrative। So exactly, this became a problem for you here। Yes indeed because जब कराची में गया था तो थोड़ी मुझे पता था कि DA Karachi में, तब तो ये था कि यार अच्छा व्लॉग बनाएंगे अब सही है। लिटरली इट वाज शॉट इनटू सेपरेट व्लॉग्स, देयर आर मेनी सेगमेंट्स मैनी क्लिप्स व्हिच आई हैड टू रिमूव इन व्हिच आई वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम अभी हम आ चुके हैं, हमारा कोई तीसरा हफ्ता है कराची में और ऐसा कर अजीब बड़ा ऐसे क्रिंजी था। लेकिन उस वक्त मैंने क्या कहते हैं मुझे थोड़ी पता था, तो उसको जो है एक व्लॉग को इतना क्या कहते हैं बहुत क्रेजी डीप इमोशनल एक काइंड ऑफ नैरेटिव फिल्म में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल था। But I wanted to and I had an idea how to, लेकिन it was again कि यार इतना टाइम कैसे लगा सकता हूँ 6 महीने मेरा ओरिजिनल था। अच्छा मेरे पास अभी तक पड़े हुए
क्या कहते हैं, एक पोस्टर्स हैं जिसपे मैंने लिखा हुआ है, डेट्स मैंने सेव करके रखी है, एक दिन हम आगे जाके देखेंगे, कि जिसमें मैंने चिट्स पे जो है ना मैं बहुत यूज करता हूँ स्टिकी नोट्स टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। Yeah, we can see पीछे लगी हुई है। ये तो वो जो है, मैं वो मुझे बड़ा उसका शौक है, तो वो मैंने इतनी चेंज की हुई है ना। पहले ओरिजिनली द डेट वाज सपोज्ड टू बी डियर कराची की रिलीज की September 12, then it became October 20th, फिर हुई नवंबर थैंक्सगिविंग का टाइम, और फिर हुआ कि जनवरी नहीं December 25, सही है, और फिर हुआ January 10th जो कि ट्रेलर में लिखा हुआ है, और फिर मैंने बोला कि यार डेट अजीब छोड़ो, फिर जो है February 2 को आया। तो हाँ, That's just how long it took you to edit it, put it together. एग्जैक्टली एंड क्योंकि बहुत सारे बीच में इनिशियली एटलीस्ट लाइक टिल अक्टूबर मुझे समझ नहीं आ रही थी ये वीडियो क्या है, मुझे बस एक बनाना था। बट व्हेन आई टॉक टू साद भाई, ही सेड के आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट वांट टू टेक दिस मच टाइम, तो ही सेड समथिंग जो कि मेरे दीवार, ये तो खैर क्या कहते हैं, नीचे आया हूँ, मेरी जो प्रॉपर लाइक वर्क स्पेस है वो स्टूडियो जो है, स्टूडियो आप स्टूडियो उसमें जो है मेरे 3 पोस्टर लगे हुए हैं मेरी 3 फेवरेट मूवीज की। नीचे जो मेन एक पोस्टर है जो मैंने लिखा था, वो मेरा फेवरेट कोट है जो साद भाई ने कहा था कि गिव द रिस्पेक्ट टू योर वर्क दैट यू वांट योर वर्क टू बी रिस्पेक्टेड एज। ओहो गहरी वजनी बातें। तो वहां से जो मूवी में मोमेंट नहीं आता, आपको डायलॉग कहता है और फिर हिल जाता है बंदा, और फिर वो बदल जाती है, पूरी स्टोरी बदल जाती है। लिटरली मेरे साथ रियल लाइफ में ऐसा। ही सेड दैट एंड आई वाज लाइक ओके शिट वाओ यार अब अपनी वीडियो 1 मिलियन दफा देखनी पड़ी। एग्जैक्टली लेकिन क्या कहते हैं, हाँ वहाँ वो जब कोट सुना मैंने तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि यार अच्छा चलो सही है, मुझे इसको फिल्म वाली इज्जत देनी है, और चाहे अवाम इसको इज्जत दे फिल्म वाली या नहीं, मुझे इसको फिल्म वाली देनी है। तो इट इज लाइक काइंड ऑफ मेरा एक छोटा सा एक फिल्म है ये मेरी, तो पहली काइंड ऑफ। इट माइट बी प्रीमैच्योर, मे बी तुमने अभी इतना सोचा ना हो, बट इज दिस what you want the future of your videos to be mainly? Yes, indeed. Well, not really. I don't think there ever will, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार डियर इस्लामाबाद बनाओ, डियर लाहौर बनाओ, डियर कराची 2 बनाओ। तो क्या कहते हैं, ट्रैवल गाइड। हाँ हाँ वही। तो क्या कहते हैं, वो मेरा सबको बताना चाहता हूँ, अभी कोई डियर कराची का सेकंड पार्ट नहीं आएगा। डियर कराची वाज वन पीस एंड हाँ, देयर इज नो पल्प फिक्शन 2, देयर इज नो इंटरस्टेलर 2। इसलिए डियर कराची भी सिर्फ एक है। अभी हम आगे बढ़। When in this point, when you said like बहुत 4 घंटे पहले you said कि you had stopped vlogging, you're not considering yourself a vlogger anymore. Oh, so not anymore. This happened at this same point when you started making the longer videos? Yes. मुझे जब मैंने मिशन लॉस एंजल्स बनाया ना, उसके बाद मुझे अपने आप में एक नोटिस, एक डिफरेंस नजर आया क्रिएटिवली कि यार क्या कहते हैं, मुझे जो है कुछ डिफरेंट बनाना, कुछ यूनिक करना है। एंड इफ यू वॉच द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2019 वाली वीडियोस, उसमें मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्योंकि मुझे फिगर आउट करना था कि क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मकसद क्या है। तो अभी मकसद मुझे पता चल गया कि इट वाज टू टेल स्टोरीज बेसिकली, एंड टू टेल very different ways and in ways that I aspire to make someday in films, and at least treat them like films even if they aren't. Sure. ये जो realization आई, ये I would say हो सकता है 2019 के स्टार्ट में इसका वो आया, थोड़ा ऐसे आया, अच्छा यार मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन मेन जो है ना, ये डियर कराची का पूरा टाइम, जब डियर कराची की शुरुआत में बनाने के शुरुआत के प्रोसेस में अगस्त में मुझे लगा था मैं ब्लॉगर हूँ, और उसके बाद फरवरी में आई वाज लाइक कि मुझे ब्लॉगर कोई नहीं बुलाए। खबरदार। And that brings us, I guess, to modern day. Modern day, yes sir. मतलब वो तो जब डियर कराची आए, honestly मैंने एक्सपेक्ट किया था कि डियर कराची would get like what 8,000 views, and but like it is alhamdulillah my most successful video so far, which is just like crazy because it is out of full of my heart. क्योंकि जनरली होता है जब आप अपने दिल से कोई चीज बनाते हैं तो उस पे इतने ज्यादा वो नहीं आते, लेकिन अगर कोई ऐसी, जब आप अनएक्सपेक्टेड ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको कोई नियत भी नहीं थी कि ये सक्सेसफुल हो, वो हिट हो जाती है। जैसे आई कॉपी तो क्या कहते हैं तब एक्सपेक्टेड नहीं था ना, क्योंकि पीपल weren't making that much videos about इरफान भाई। Right. फिर जो है ये हिट
हुआ और उसके बाद मेरे अंदर जो एड्रेनलिन चढ़ा, मैंने फिर जो है दोबारा सारों को फोन की, सारा देखो ये अभी जो है ना एक और आइडिया है मेरे पास, ठीक है। अच्छा तो शी लाइक यार बहुत अजीब, दोबारा जो है डीप नहीं हो प्लीज। मैंने कहा नहीं सुनो ये अच्छा आइडिया, सही। तो बस अभी उस पे ही कब से काम चल रहा है। वो एड्रेनलिन काफी जाया हो गया क्योंकि बड़े मसले चल रहे थे शुरुआत में पर्सनली। Okay. खैर, तो वो जब जे कराची के बाद जो आइडिया पे हमने सोचा था उसी पे अभी काम चल रहा है। अपडेट वीडियो बना रहे हैं हम एक, लेकिन डिफरेंट तरीके से थोड़ा। Okay. ठीक है। I think we should swing towards the questions because questions भी बहुत ठीक है। सारे आए हैं। ठीक है सर। I sent them to you beforehand ताकि तुम Yeah. जरा जी glance कर लो। We'll go through them quickly and you can Okay. answer them as quickly or as slowly as you want. But Rapid fire. बालाज खान का सवाल आया, genuine question अरे, to me or not? कौन है Hello, बालाज खान? Balaj. दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा। ये मैं लाइव करता हूँ दूसरे चैनल पे, लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो उस पे ये मेरा मेन ओजी मॉडरेटर है बेसिकली। अच्छा तो okay. हाँ, और बड़ा अच्छे ब्लॉगर भी है बालाज भाई। Like I don't know but it looks like this guy's name is Hammas Ahmad Khan. Bro, just skip, bro, skip. एक तो उसका ये सवाल था, how does he मेरे come यहाँ up with- वीडियो काट देना, ठीक है, इस पॉइंट पे। I'm not here. भाई सखील अच्छा म्यूट कर लो। People who are listening on SoundCloud and stuff, they'll be like, "ये pach is coming," but khair, that's Sahil eating. Hamas is asking, how does he come up with dope transitions and make simple things look so artistic? And second question, what are his future plans after studying filmmaking? So you want to study filmmaking, I guess? I'm a film major currently, अभी कर रहे हैं। Excellent. Transitions originally I was really obsessed with them क्योंकि मेरी वीडियोस में आप ऐसे भरे पड़ेंगे, मेरे से ज्यादा तो ट्रांजिशंस होंगे। अब तो हाँ नफरत आ गई मेरे ट्रांजिशन से। क्या कहते हैं, अब आप अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह कोई ट्रांजिशन इस्तेमाल नहीं किया गया भी है। Single cut पूरी वीडियो। सिंगल कट पूरी की वीडियो कसम से। अब तो बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन डोप ट्रांजिशंस के साथ अम्माद भाई ऐसे आते हैं, हम बस सर्च कर रहे हैं, रायन एंगल है यूट्यूब पे, फ्री में ट्रांजिशंस देते हैं वो, उनके हम जुगाड़ पे चलते हैं। लेकिन आई डोंट कम अप विद ट्रांजिशन, ठीक है, मैं नहीं How do बताता, you? मैंने अच्छा I think his other question is, how do you make simple things look so artistic? दो जवाब अभी। अच्छा तो अच्छा okay, simple things look so artistic. I guess I really go into because this question is really nice क्योंकि it's directly correlating with the next series I have planned after this update video. It's about the simple things, you know, it's about the art in simple things. मैंने technically नाम ही दे दिया है, लेकिन क्या कहते हैं, मैं बड़ा एलबी डीप होने जा रहा हूँ, लेकिन यही मेरा आइडिया है। अब तैयार हो रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है दुनिया कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एक सिंपल रूल पे आती है कि यार बस अच्छा करो, बुरा नहीं करो, सिंपल। तो इसलिए मेरा दिमाग इस तरीके से मुझे सिंपल थिंग्स में बहुत एक मतलब खूबसूरत चीज नजर आती है। जैसे मोमेंट्स में आई गेस एक हंसी वाले मोमेंट्स आते हैं, और मुझे शाम बड़ी अच्छी लगती है। जैसे मेरी एक इंस्टाग्राम सीरीज चल रही है मोहब्बत मगरब के नाम से, उसके पीछे बस मतलब ये है कि मुझे शाम बड़ी अच्छी लगती है। और क्या कहते हैं, आई गेस सिंपल थिंग्स में टेक्निकली अगर आप पूछें तो मुझे बताओ दुनिया ने कितने गम दिए तुम्हें? ये जो डीप पोएट्री और शाम वाली बातें हैं, ये वैसे बंदा नहीं करता Bro, जब इसकी तक वीडियोस गम में और के बहुत थ्रू में शायरी से आती नहीं है। जाते तुम। इसकी वीडियोस में भी ना बहुत शायराना डायलॉग्स आते हैं बॉय के। ये गम आवर का बॉय है आई थिंक। तो हाँ आई मीन आई गेस आई डोंट नो, लेकिन मुझे बड़ा डीप होना बहुत अच्छा लगता है, और इमोशनल होना, और ऐसे जो है ना विंडो के बाहर देखना, बस ये होता है ना। गुड ब्रो, मतलब यू आर एट द राइट प्लेस। हम सारे ऐसे ही। एग्जैक्टली वो रिलेटेबिलिटी भी आती है ना फिर। I made a Twitter career out of this, so Yeah. Sarhel invented Gum Hour. Yeah. On Twitter. I don't know, it's very वो क्या कहा जाए, वेग सवाल है, और उसके पीछे की जवाब बहुत गहराइयों में चले जाएंगे। तो बस जो अननोटिसेबल चीजें होती हैं उनको बहुत विविडली नोटिस कराना ही आर्टिस्टिक बनाना होता है, I guess. Yep, that's what art is. And what are your future plans after filmmaking? आफ्टर फिल्मिंग मतलब कॉलेज करके Bollywood. yes. हाँ, अजय खान के साथ मूवीज बनाएंगे हम। Go studio. नहीं अच्छा कोई बात नहीं।
लेकिन एक्चुअली जेन्युइनली दो मेरा प्लान तो ये है कि उम्मीद है कि 1 साल की नेटफ्लिक्स पे जॉब करनी है, देखना है कि नेटफ्लिक्स कैसे काम करता है, और बेसिकली उनका मुझे फिगर आउट, क्योंकि मुझे आई वांट टू समहाउ ब्रिंग नेटफ्लिक्स इनटू पाकिस्तान, इफ नॉट मेक अ नेटफ्लिक्स फॉर पाकिस्तान. आई ऑल्दो देयर इज वन, आई थिंक आईफ्लिक्स हाँ के नाम कुछ है या Bro, I know the secret formula. Seriously, oh no जी. you have a Pakistani woman in hijab. और उसका हिजाब गिर जाता है और फिर सारे आगे कवर करते हैं उसको और वो हिजाब पहनती है. 100% Netflix will buy your series for 10 seasons. Done, I okay. think this is a joke. It's not. 10 seasons. But वैसे हाँ, I didn't realize you're very ideally situated because LA में तुम हो और you know it's a great place to be if you're into filmmaking. Exactly. Yeah. And I Yeah. even have like एक नेटफ्लिक्स की मैं ऐसे सर्च कर रहा था जॉब्स, तो एक पोजीशन थी जो कि मेरी रिक्वायरमेंट फिल कर रही थी और वो डिग्री भी नहीं मांग रहे. इट वाज लाइक 4 years प्लस सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एक्सपीरियंस. Yeah. Good. ओके, सोशल वो थी, सोशल आई गेस इट वाज लाइक सोशल मीडिया प्रोड्यूसर बेसिकली. Okay. Okay. वो वीडियो जो नेटफ्लिक्स की आती रहती है यूट्यूब पे. तो खैर उसके बाद का इरादा मेरा बस ये है कि नेटफ्लिक्स पे इंशाल्लाह जॉब करेंगे और 1 साल के बाद क्विट करूंगा और फिर पाकिस्तान में जाके अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा होपफुली. तो Okay. ये रहा. Fiza Khan का सवाल, how Shahzad show gained popularity? I think we've talked about this. He just made a shit ton of good videos. Mir Hamza का एक मुश्किल सवाल. Ever felt like giving up? Wow. यस, वाओ, Bro. ओके. इसका ये भी तो बड़ा हम चारों को जवाब देना चाहिए. Plum hour. I gave up tonight. करी के बाद. जापानीज करी ने बड़े गम देने साहब. Yeah. यार गिविंग अप, यस डेफिनेटली डीए कराची के दौरान बहुत ऐसे मोमेंट्स आए कि यार छोड़ ही देता हूँ अजीब यूट्यूब भी. डीए कराची के बाद आई हैव अ लॉट ऑफ मोमेंट्स, अ लॉट, एज आई गेस एवरीबडी डज प्रीटी मच, बिकॉज देयर इज दिस पॉइंट व्हेन यू आर लाइक, क्योंकि यूट्यूब इज सच अ risky and like depending on all of you. If you are good on it, then you succeed. But if you are not, then what do you do? तो इसलिए ये बड़ी एक existential crisis आता है I guess आपका YouTube पे कि अभी क्या कैसे करना है. तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आए हैं क्योंकि मोस्टली, लेकिन वजह ये होती है कि भाई वीडियो कब आएगी, ये सबसे ज्यादा मेरा वो होता है कि ऐसे मुझे होता है कि यार अच्छा मैं कंसिस्टेंटली अगर नहीं हो सकता तो फिर मेरा फायदा क्या है यूट्यूब पे होने. ये थॉट आता है. लेकिन आई देन रिजुवेनेट एंड आई एम लाइक यार मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट के लिए बनाऊंगा और ऐसे समथिंग. तो वो उस मोड में चले जाते हैं हम, क्या कहते हैं, बड़े टिपिकल इंस्टाग्राम वाले मोड में. लेकिन आई हैव, बट आई काइंड ऑफ ब्रिंग माई सेल्फ अप अगेन एंड अगेन. I don't know, you're from Karachi, so I would expect this to be obvious, but चलो पुलाव या बिरयानी? बिरयानी ऑब्वियसली, नो क्वेश्चन. एक और extreme deep सवाल by Hazra Mumtaz. What does he desire as the final outcome of his life? अबे यार एक अच्छी apart from death. If anyone manages to answer this question, like seriously, why are you alive anymore? I don't think I can answer that. I don't think anybody can. Exactly. Dear Karachi की directors commentary कब आएगी? डियर कराची की आएगी डायरेक्टर्स कमेंट्री. मैंने सोचा था कि आए यार, लेकिन डायरेक्टर्स कमेंट्री होगी तो वो कुछ ज्यादा ही ब्रॉड हो जाएगा और वो कोई 2 घंटे तक एक्सटेंड हो जाएगी. लेकिन क्या कहते हैं, ब्लूरे पे Release the Shahzad cut. Post it to people. 4 hours. लेकिन हाँ नहीं, मुझे लगता है शायद आए. अगर आएगी तो मोस्ट प्रोबब्ली पेट्रियन पे. मैं पेट्रियन भी कंसिडर कर रहा हूँ शायद शुरू Okay, okay. करने. पैसे तो मिले ना यार, थोड़ा तो ग्रीडी हो. सरंग काशिफ के 2 सवाल थे जिसमें से एक हम चलो नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि दैट इज हाउ डिड यू मीट इरफान जुनेजो. लेट्स जस्ट गो. अगर आप दूसरा सवाल उनका अच्छा है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरों तक कैसे पहुंचाएं विदाउट शाउट आउट? क्योंकि शुरू में लाइक वी टॉक्ड अबाउट तुम्हें कोई 3.5 साल लगे थे टू गेट टू 1000 सब्सक्राइबर्स. हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टू यू नो कीप पुटिंग आउट content and eventually that did get to people? I guess मोटिवेशन आपकी वो जो सोर्सेज होती हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं और जिससे आप मोटिवेट नहीं होते, वो बड़ी मैटर करती है. Usually sometimes people's sources of motivation is encouragement,
कि यार कोई इंकरेज करे आपको तो आप बड़े मोटिवेट हो जाते हैं। मेरे केस में वैसा नहीं था, एटलीस्ट इनिशियली ऐसा नहीं। बस ये था कि यार मुझे बहुत खुशी मिलती है, एक काइंड ऑफ एस्केप है अगेन वीडियोस बनाना मेरे लिए, और इट्स लाइक आई एम going into this creative universe where I can be the boss of myself because I haven't been boss of myself, क्योंकि वैसे भी छोटा भाई तो मतलब ना घर में ना स्कूल में अजीब कहीं भी तो मुझे ये आइडिया बड़ा फैसिनेट करता है कि आप एक चीज अपने हाथों से बना सकते हैं और उसको किसी भी तरीके से जो है प्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो ये एक चीज थी जो मुझे मोटिवेट करती थी। आई गेस प्रोसेस ही इटसेल्फ वाज क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर मी। तो I mean, some people get lucky. That's a fact. But for nearly everyone who's very successful, it's just a lot of effort. Exactly. फिर ऐसे कुछ और भी सवाल हैं. How do you focus on his passion without getting that much attention? That's fine. अगर 100 subscribers करने में 1.5 साल लग जाए, should I continue YouTube? Clearly, मुजम्मिल को पूछना, शहजाद has girlfriend? मुजम्मिल क्या तुम्हें बनना है? I don't know. Why are you asking? मतलब we're okay with it. It's 2020. Yeah, I mean, I don't know. नहीं, That's the word. मुझे honestly जो है ना इसके बारे में बड़ा मेरा वो है। Do I guess people ask you this of like? तो एक तो प्रपोजल भी आया भाई मुझे। हाँ, लेकिन वो काफी लाइक वो अगर मैं रिप्लाई करता है तो फिर शायद मुझ पे वो क्या कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आ जाती। कौन कहता है YouTube doesn't make you successful? कौन कहता है? Abdullah is asking a lot of questions about vlogging, how to make a story-based vlog, what to keep in mind when vlogging, how to script a vlog. अबे चलना ट्यूटोरियल चल रहा है ये। And his fourth question is, tell him to make more tutorials. Abdullah, I think I'll move forward from this one because we've talked a lot about vlogging. आप दूसरे लोगों की videos देखें and just get inspired by them and try to do the same thing and eventually you'll make your own stuff. नहीं, और इसका दूसरा पहलू ये है कि हो सकता है इसका फैन हो, मतलब कि देखो moving on. जरूरी नहीं है व्लॉगर बनना। मैं बचपन से मूवीज देख रहा हूँ। अच्छा, बॉलीवुड पे तो मैं जिंदा हुआ हूँ, तो अब मैं जॉनी लीवर की जगह तो नहीं ले लूंगा ना जाके। मतलब Ali Shamim, who also has a podcast, he was asking plans after uni and if he ever sees himself coming back to Pakistan to settle. We've talked about this. What was the thing that made you upload the first video? We've talked about this. Who is Sara? Arsi Dada wants to know. Who is Sara and how is she such a huge motivation to Shahzad? You want to talk about it? Okay. Yes. So she is like probably my most closest friend. And क्या कहते हैं, I met her through a friend of mine, Asfan. और क्या कहते हैं, वो ओरिजिनली ऐसी वीडियोस देखती थी और फिर उनने बात हुई। ये जो चैनल टूटते हैं ना। नहीं वो फिर क्या कहते हैं, बस सब समझ आ गया। उसके बाद जो है काफी हमारी जो है वापस हो गया था, वापस हम जो है मिलने, मतलब दोस्ती वापस हो गई थी टेंशन के खत्म होने के बाद। ये क्लैरिफाई करना है मुझे। Yo, why are you stuttering, bro? Why are you stuttering? Anyways, calm down, man. हमने जो है, हाँ, तो वो ह्यूज मोटिवेशन इसलिए क्योंकि आई गेस शी लुक्स एट the content I make in the same way that I want to look at it, you know. तो इसलिए मुझे वो बड़ी एक नेमत लगती है वो, क्योंकि she is very creatively involved with my perspective of looking at things. और generally भी वैसे भी हम जब बात करते हैं तो we talk a lot about art and yes, specifically just random art के मतलब इसके पीछे की meaning क्या है, और ऐसे करके जो है ना हम बड़े वो हैं। अगर भुट्टो अभी जिंदा होता तो हाँ, तो दुनिया कैसी होती? What if Zia-ul Haq never died? तो इसलिए वो जो है स्पेसिफिकली डियर कराची में, तो उनने जिस कदर, क्योंकि अच्छा तो मिशेल लॉस एंजलिस जो था, जैसे मैंने आपको बताया था, शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी कि यार तुम कर सकते हो लंबी वीडियोस अगर करना चाहो तो ये जो पर्सपेक्टिव था ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था।
और मुझे लगा था कि यार ये वाकई जो बात है। तो फिर जो है ये कराची के थ्रू आउट ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जब उनको मैंने कुछ आइडिया ऐसे बताया नहीं था। तो क्योंकि nobody else but she was involved in it and listened to me while I guess went through several creative blogs throughout Dear Karachi and I guess हाँ बस वो throughout जब थी ना available तो वो मेरे लिए बड़े एक वो था। It's like I really appreciate that क्योंकि that hasn't been the case in my life mostly. So when there is somebody who understands the same creative process as you do, that's very rare. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने जो है डियर कराची उनको डेडिकेट किया था क्योंकि वो समझी थी थ्रू आउट एंड शी हरसेल्फ इज एन आर्टिस्ट। वो बहुत चीजें करती है, उनको गाना बड़ा अच्छे से आता है, बीट बॉक्सिंग करती है, डांस करती है, पेंटिंग्स बनाती है और एक्टर है माशाल्लाह। अली अगला एपिसोड डिसाइड तो क्या कहते हैं। हाँ, That's very cool. Someone's asking, you're a fan from South Africa, what your next project is. We've talked about it. Abdul is asking, आपका new vlog कब आएगा? And then I think this is him identifying himself. मैं वो जिसने मीटअप पे चॉकलेट दी थी आपको। आपका ब्लॉग अच्छा, अरे हाँ यार वो चॉकलेट बड़ी अच्छी थी, मैंने इंस्टेंट लिखा ली थी उसके बाद, मीटअप के बाद बड़ी भूख लगी हुई। बताओ कौन सी चॉकलेट थी, बताओ कौन सी थी कौन सी थी बताओ जरा। मुझे याद है, ठीक है, क्रंची थी, हनी वाली एक बड़ी हनी मंच वाली, ठीक है, याद ऑल्दो मुझे लगता है शायद एक और बंदे ने मुझे चॉकलेट दी थी तो हो सकता याद है मुझे। And then someone is asking Azan Kaisar how to take good cinematic shots. I don't know, man, watch tutorials. But his other question is, will you pursue YouTube as a career? By the way, your work quality is the same as Junejo. How? Bro, No I copy Junejo नाम की एक वीडियो। मुझे नहीं पता ये ताना था या जनरल सवाल। How? Actually, they're the same person. Shahzad and Irfan Junejo are the same person. Yes. How he make content? Some tips from Shahzad show. I am Taimur Salim. I don't know, man. कैसे जवाब दें इस बात पे? Where and how to क्या start? मतलब है इसका? लाइक क्या हाथों से बनाता है? वो These are also very young people, so हो सकता है, you know. यार यंग, मेरी बात सुनो। ये बच्चा हमारे सामने जो बैठा है, ये जो 12 साल का था, ये सबकी मार रहा था वीडियोस बना के। अच्छा, how fucking young are these people and how do they have access to social media? तुम्हारी अम्मा ने परमिशन दी कि नहीं? Oh god. Just nice. Humail, I don't know. Where to and how to start the video scripting process? What factors should we focus on? This is something you're looking at now. That would be interesting. Okay, scripting process कैसे शुरू करें? I guess एक चीज क्लैरिफाई करने चाहता हूँ। देखो, मैं स्क्रिप्टिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे करनी अच्छी लगती है। लोग पूछते हैं कि यार व्लॉग के लिए कैसे स्क्रिप्ट लिखूं? व्लॉग के लिए स्क्रिप्ट आप नहीं लिखते। जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो फिर वो व्लॉग नहीं रहता, बाय द वे, ठीक है। व्लॉग बेसिकली दिस, बट लाइक more like if you are holding the camera, so this is actually a vlog, expression of opinions and you record them, that is a vlog. But scripting impromptu, exactly. तो क्या कहते हैं यार, स्क्रिप्टिंग ऐसे शुरू करें आप कि मतलब आपको जो डायलॉग्स है, मतलब मैं लिटरली जो डायलॉग्स होते हैं जो मुझे बोलना होता है वो लिख देता हूँ। चक 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 Exactly. I guess it's a good idea would be to maybe have an idea of what you want the final product to be, and then just, you know, make notes along the way of how to get from point A to point B. Exactly. Depends on what you're making exactly. मतलब अगर आपका एक आइडिया है और उसके अराउंड आप रिवॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेन एक लिख दें कि यार वीडियो जो है क्या मकसद, क्यों बना रहे हो, क्या है एक राउंड है क्यों, तो वो आप लिख लें, स्क्रिप्ट के ऊपर लिख लें और उसको ही मेक श्योर करें कि अपने नैरेटिव में वो किसी तरीके से डिपिक्ट होता रहे। और सिर्फ और स्क्रिप्टिंग नहीं होती, स्टोरी टेलिंग में बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं, बोलने के तरीके में होते हैं, पॉजेस में होते हैं और टोन में होते हैं, गानों में होते हैं, गानों में ही सबसे ज्यादा। एडिटिंग ऐसे करें आप जैसे, मैं तो खैर मेरी बहुत नोटिस होती है, मसला यही है कि जब एडिटिंग आपको नोटिस होती है ना तब एडिटिंग अच्छी नहीं होती। जब नहीं नोटिस होती और आप फील में चले जाते हैं, then the edit is good. Try to make edits that serve the story rather than become the story.
There you go. हाँ. Exactly. But इसी बात पे अगला सवाल ये भी पोस्टेड पे जा रहा है जो बात अली जान ब्रावो का अलग सवाल आ गया है कि चलो he's also asking about how he designs his stories for video, but he's asking a sort of technical thing. How do you make the animation in your videos? ओके तो मतलब मुझे एक्चुअली मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ क्या कहते हैं पहले तो ये जो एनिमेशन वाला सीन है डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द एनिमेशन यू आर आस्किंग फॉर इफ दैट्स लाइक द ओके तो मैं बहुत सारे वो यूज करता हूँ ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स यूट्यूब पे जाके प्लेन ग्रीन स्क्रीन फ्री MP4 डाउनलोड तो ये डाउनलोड करता हूँ और वो इस्तेमाल करके फिर की करके फिर उनके साथ मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ It's not the animation that I make, it's how I play with them is what I am basically. Yeah. हाँ, I guess I don't know. Animations करने का मुझे बड़ा शौक है क्योंकि मुझे बहुत सब कुछ करने का शौक है. Literally मुझे अपनी वीडियोस में ये भी चाहिए टाइटल भी चाहिए, एनिमेशन भी चाहिए, ट्रांजिशन भी चाहिए, ये भी चाहिए. तो it's mostly just YouTube. लेकिन it's how you use them is what makes it the art. और जहाँ तक क्या कहते हैं स्टोरी डिजाइन वाली बात है, मैं अपनी मेरा एक पूरा फुल क्रिएटिव प्रोसेस ऐसे है कि मैं गानों को सुनता हूँ. एक आइडिया होता है मेरे दिमाग में कि अब वीडियो है जैसे अपडेट वीडियो बनानी और मैं अभी गानों को सुनूंगा कि अपडेट वीडियो मैं डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकता हूँ. अभी ये जो आइडिया है ये बड़ा वो है नोलन टाइप वाना भी नोलन है बेसिकली मतलब कोई हाँ बेसिकली ये वो वाला आइडिया है जो अभी आया है मुझे अपडेट वीडियो का कि मैं एक आइडिया एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसी को ही एक वीडियो बन गई. ये काइंड मैंने आइडिया बता दिया लेकिन वैसे ही 2-3 दिनों में आने वाली है तो also by the time people get to this point in the video I think वो वीडियो आ चुकी होगी. Exactly. तो क्या कहते हैं हाँ मैं तो ऐसे स्टोरी बस डिजाइन ऐसे करता हूँ कि यार एक आइडिया होता है मेरा मैं गानों सुनता हूँ गानों से इंस्पायर्ड होकर मुझे और उस स्टोरी को लीड करने में आते हैं. ट्रांजिशन मेरे बड़े लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. अच्छा ट्रांजिशन एडिटिंग वाले नहीं वो जो ऐसे बूश करके आते हैं वो ट्रांजिशन जेन्युइन लाइक स्टोरी वाले ट्रांजिशन मेरा आप एक नैरेटिव से दूसरे एक टोन से एक हैप्पी टोन से सैड टोन में कैसे कन्वर्ट करें वो गानों के साथ बेस्ट तरीका होता है अगर आपको शुरू करना है. दैट्स एटलीस्ट तो म्यूजिक इज अ बिग पार्ट ऑफ हाउ आई डिजाइन अ स्टोरी. अच्छा फिर अब हमारे पास दो सवाल आए थे. एक I don't know this Momina Munir is this person. I don't know if we know her, but she had these questions, and one of the questions was also something I noticed in the videos. Bro, तुम सबसे आप करके क्यों बात करते हो? Is this like a personal thing? तुम्हारे घर में सब ऐसे बात करते हैं क्या सीन है? That's the first अच्छा question. वो मैंने पॉडकास्ट सुनी थी पॉडकास्ट में मैंने बोला कि आप नहीं बुलाया आप मुझे तुम बुलाए ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से सब आप बोलते आ रहे अम्मी अब्बू ये घर वाला माहौल आप वाला है और घर से बाहर आप वाला है. मैं ऐसे ज्यादा लोग मैं लिटरली उंगलियों पे गिन के आपको बता सकता हूँ लिटरली कोई 3 लोग हैं जिनको मैं तुम बुलाता हूँ. मैंने गिन के दिखाया लिटरली 3 लोग हैं ही 3 लोग बाकी सब. And are they all younger than you? They're all us. Oh, they're us. Well, they're actually the same age as me. सही है. तो हाँ वो people वही तो क्या कहते हैं मैं इसलिए आप बुलाता हूँ क्योंकि घर में माहौल ही बचपन से ही आप रहा है और मुझे कभी अच्छा मेरा जो असफंद है ना जो मतलब वो सबसे वो है मेरा एक बड़ा छोटा सा सर्कल है और बड़े क्लोज बहुत कम दोस्त है तो वो तो बचपन से खैर कजन है मेरा वो तो क्या कहते हैं वो उसको मैं भी शुरू में आप बुलाता था. फिर जब हम कोई 5-7 साल के थे तो उसने एक चीज मुझे बोली थी अभी तक याद है जो कि सरप्राइजिंगली रियल होगी कि जब हम बड़े होंगे ना तो हम एक दूसरे को तू बुलाएंगे. तू मैं हो गई सब हो गया और अभी तू बुलाते हैं तो makes sense घर का माहौल है and बहुत से घरों में होता है which is fine. अच्छा this is not I just want to make sure this is not something सिर्फ तुम करते हो अपने घर में भी सब नॉर्मल बात कर रहे हैं. एक बच्चा है वो आप करके बात कर रहा है. नहीं ये that would be pretty weird. Yeah. और दूसरा सवाल ये था जो कि तुमने नहीं देखा होगा because this was not in the podcast. What she wanted to know was you in your videos you've often said that you are an introvert and you have said this in several videos and what she I think wanted to understand was जो introvert लोग होते हैं ना they don't say that they're introverts as per her. So she's trying to balance you being an introvert in your own words और फिर तुम सबको बताते भी फिर रहे हो
कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एंड देन एट सम पॉइंट्स तुम ये भी कहते हो कि मुझे दोस्त बनाने का बहुत शौक था. तो हाँ. हाउ इज दैट like fitting together? वाओ, मोमिना को जनरली क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है तो वो दिखता है इस क्वेश्चन. ओके. आई नाउ हैव रियलाइज, मैंने डियर कराची में भी इसलिए ये मेंशन करना जरूरी था क्योंकि ये सिर्फ एक सेल्फ डायग्नोसिस है. मुझे लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि मुझे नए लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता. नॉट देखें, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है. लेकिन जेन्युइनली मुझे एक वो, आई गेस इट्स नॉट द process of talking to them, it's mostly the act of going up and doing the thing, you know. तो वो मैं बड़ा जनरली सोशली एंग्शियस बंदा हूँ. आई डोंट नो नाउ इफ दिस इज रेसिस्ट और नॉट, लेकिन इधर के लोगों से मेरी नहीं बनती. Yeah, no. Bro, अमेरिका में जब मैं भी, मुझे याद है, fuck white people. No, it's not just, there was this one time I remember, वो जो तुम कहते हैं ना स्कूल में तुम्हें अजीब पैनिक अटैक सा होने लगा था. I remember this one time when I had gone to America, not even the first time, but like चौथी तीसरी दफा शिकागो में था. For some reason my mom took me to a library, मुझे कोई किताब देखनी थी, क्या करना था, और वहां जाके ना I just felt, bro, ये सब लोग तो बहुत मुख्तलिफ हैं. I have no idea क्या हो रहा है, how do I behave. It's not a racist thing, it's just, you know, you come from a different place and people are different. जी exactly. So हाँ, I guess it's that, but like introvert की बात यहाँ से आती है कि मुझे it was a clearly self-diagnosis because I don't now think I'm an introvert. There are parts of me that are majority parts में मेरे वो introvert वाली हैं, लेकिन क्या कहते हैं, बड़ा अजीब सा इंसान हूँ मैं क्योंकि मुझे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है. मुझे अपने कमरे में जो है बड़ा अच्छा एक स्पेस लगती है, अपनी अपनी दुनिया लगती है, मुझे बड़ा मजा आता है. तो वो जो है मुझे पार्टी जो है ना वगैरह में जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. जब पार्टीज होती हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं, लेकिन अगर एक दो दोस्त हो तो वो बड़ा अच्छा लगता है. जैसे मीटअप था, अभी मीटअप में देख के लोग बोलेंगे कि भाई किस एंगल से अपने आप को इंट्रोवर्ट कहने का तू है कौन, क्योंकि मीटअप पे हाँ भाई ऐसा है कि अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो. तो ऐसा करके तो इट वाज लाइक कहाँ से इंट्रोवर्ट है, लेकिन अंदर से जो चल रहा था ना वो ठीक नहीं पता. हाँ, बस सोशली एंग्शियस हूँ मैं काफी, लेकिन जब इंसान जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो थोड़ा कंफर्टेबल है मेरी प्रेजेंस से, तो फिर इतना मसला नहीं होता. I guess. Do you still then believe that you are genuinely an introvert? I just think I really like my own space. I don't know if that would be called an introvert, क्योंकि अभी अगर मैं introvert होता तो मुझे नहीं लगता मैं इस podcast को हाँ बोलता. लेकिन clearly I don't think I am, but like there are some parts of me that is like यार, but I just really like my own space. So ऐसा है. Fair enough. I think that's good. It's been fucking 2 hours. We were, एक पॉइंट था कि हमने कहा था बस यार 1 hour पॉडकास्ट हम टाइट रखेंगे. फिर पिछली जो ये एपिसोड है इससे पिछली 2 एपिसोड जो है ना, मतलब nothing चल रहा है. Shahzad, I think that's the end of the audience questions. That's the end of our questions. Is there anything you specifically want to talk about before we wrap up? I just want to say कि यार मैं व्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है. और एक और यार मुझे फ्लेक्स करना था जो मुझे ऐसे मूड हो रहा था, तो कि मैंने ये कराची 10,000 लफ्जों का स्क्रिप्ट है बाय द वे, बस मुझे ये करा था. ओके. बस ये चाहिए था. Hats off to you, sir. Hats off. ऐसे मुझे तो सोचा कि थोड़ा शो ऑफ कर ले. नहीं बस ठीक है जी. Thank you for coming, Shahzad. It's been great. I Thank hope you it's for been having as me. helpful. Of course. I hope it's been as helpful for all your supporters and viewers who end up watching this video. Hopefully आपने 2 घंटे पूरे गुजारे होंगे. If you're on audio, it might be easier. I don't know. But ठीक है जी. I think that's good enough. Thanks for coming, Shahzad. I think chilling scene हमारा हो सकता है. We're much older than you are, but you seem fine. And I think हमारी फिर आगे पीछे होती रहेगी मुलाकात. Okay जी, I'm the Mohalla Bar, Rizwan Pelwan, Sarkhel 7 Khan. Shahzad, do you want people to find you on Twitter? No, please. The Shahzad Show on YouTube and Instagram. Find him, support him. The guy's doing great work. Thanks for listening. TPR Pod's group account. Bye guys, we're gonna stop recording. Bye bye. Bye. Peace.